Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. Today is episode number 18 and last episode was when we started talking about how do you start a marketing agency. We said that we are going to be talking about how do you start a coaching business, but we realized we've already covered it in episode number 3. If you have any, please go through that episode. If you have any questions, we are always here to help you. But since we had promised a very strong piece of content for coaches, we have created one of the best episodes that we have designed on paper for coaches. So you've already seen the thumbnail by now, you've already seen the title by now. We are going to talk about over 15 to 16 different reasons why coaches are failing in the market. Right in the first episode, we spoke that getting into the coaching business is one of the easiest business to get into because the barrier of entry is so low. But low entry barrier also means that many people, many coaches, many business owners will start dropping out of this industry like flies. So what we are going to now talk about is why are coaches failing? Hi, I'm Manish Ahuja, the person on the other side of the screen who's going to start smiling in 3, 2, 1 now is Yes. Pankaj Agarwal. Hi. Hey Pankaj, how are you doing? I'm doing good as always, and I'm excited about this episode as always. ये मेरा patented dialogue हो गया kind of. नहीं, but वाकई में whenever we start creating a database of ideas, it actually turns out it excites me too. So I can completely understand why you're excited about today's Yes, episode. क्योंकि अभी चालू किए थे तो we were on different topic, but अभी Hmm. चालू करते करते इतना solid podcast बनने वाला है कि exactly like हमारा खुद का experience जा रहा है. When I was creating this episode on why coaches fail, जो हम लोग reason list out किए, I was Correct. keeping myself under this कि क्यों क्यों हम फेल हो सकते हैं, कब कब कैसे improve किया जा सकता है. So everything we have listed down from our experiences. So ये काफी Correct. practical होगा. Correct. Just to give you a perspective, audience members, Pankaj has been running this agency called Business Muneem for the last 3 to 4 years, where he has helped hundreds of coaches, where he's consulting some very high value coaches on monthly basis on a retainer. So he's seen this failure aspect very, very, very Yes. closely with multiple coaches. On the other hand, Pankaj now is transitioning into coaching business full time. He's going to be deciding whether he's going to be doing coaching and agency or only agency or coaching. So he's transitioning. So he is dealing with some challenges by himself. Talking about me, I have been into the coaching business for the last 4 years full time. Where earlier I was selling some other coaches programs where I have built multiple coaches or have helped multiple coaches get into this industry. I am a coach myself, so I have seen some of these points that we are going to discuss. We are going to be vulnerable. We are going to be honest. We are going to be absolutely cutthroat with this episode. Let's see how that goes. So, Yes. Pankaj, would you like to start? Yes. Basically, we have covered 16. We have listed down 16 topics. So, topic number 1 हमारा है too much focus on learning. So, I would love that कि आप चालू करें इस पे, ठीक है. क्योंकि आप ये point note किए थे too much focus हाँ. on learning, and बताइए आप, फिर हम ऐड करेंगे इसमें of course. ऐसा अगर एक भी कोच है जो इस पॉइंट के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो मैं आपको बताऊंगा वो कोच है ना झूठ बोल रहा है. सही बात व्हेन है. यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, एक चीज होती है आपको क्लियरली लगता है यार मेरे पास है ना ये चीज का 100% इंफॉर्मेशन नहीं है. ये चीज, ये एक स्किल सेट अगर मैं सीख गया ना इस कोच के पास, इस कोच का मैंने कोचिंग ले लिया और उसका जो Yes. सीक्रेट फॉर्मूला है अगर मैंने उसको अप्लाई कर लिया ना तो ही जाके मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा. हाँ, ये मैं आज भी करता हूँ. हर इंसान करता है, हर इंसान करता है. द आइडिया इज one of the biggest reasons why coaches are failing is that they fail to understand that coaching as a business is only going to work when you start executing. आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे आपको ऑब्वियसली फ्लॉज दिखेंगे, आपको गैप्स दिखेंगे, आपको इंप्रूवमेंट एरियाज दिखेंगे. ओनली व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन how to improve your coaching business are you going to make a lot more impact rather than focusing on अरे इस कोच के पास भी चला जाता हूँ, इससे भी ये सीख लेता हूँ, मुझे ये नहीं आता है, पहले ये स्किल कवर कर लेता हूँ, पहले ये समझ लेता हूँ, फिर ही जाके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा. आप स्टार्ट करने के पहले ही फेल हो जाओगे अब, क्योंकि learning is unlimited. Options to grow are unlimited. You need to know where to draw the line and where do you start actually putting your knowledge into practice. So that is, I think, one of the very prominent reasons. Would you agree, Pankaj? Yes, definitely, because मेरे केस में क्या होता है, I'm into डिजिटल मार्केटिंग फील्ड या परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड, जो भी बोल लीजिए. So
वहां पे क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों को और वैल्यू दूंगा। ये जो मेरे करेक्ट। स्टूडेंट्स हो रहे, तो ठीक है, मैं फेसबुक एड्स तो चलाना जानता हूँ, मेटा एड्स जानता हूँ, ये जानता हूँ, गूगल एड्स जो भी है, मतलब अपने फील्ड में जान रहा हूँ, और इसको और बेटर कैसे कर ले। मेरा 100 स्टूडेंट है, 100 में से ये 3 लोगों को रिजल्ट नहीं आया था। तो ये क्या मेरी लैक ऑफ क्लैरिटी है, मुझे नहीं आता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले आपसे बात कर रहा था कि उनका वेबिनार फेल हो रहा है, जबकि हमेशा से उनका चल रहा था, बट कुछ टाइम से कुछ चेंजेस के कारण फेल हो रहा है। तो मुझे लग रहा था नहीं, मुझे वेबिनार सेलिंग सीखना पड़ेगा शुरू से वापस से, मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे स्टूडेंट को फिक्स कराना है वो चीज। तो चलो इसका कोर्स रजिस्टर कर लो, रसल ब्रंसन वेबिनार सेलिंग सिखाते, जाके वापस से उनका पूरा 4 घंटे का वीडियो फिर से देख लो। और मुझे लगता है कि देखने में कोई बुराई नहीं है, ऑफ कोर्स रिवाइज कर लो, दिक्कत नहीं है, बट हाँ, दिक्कत क्या होता है कि उसकी वजह से अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं लोग कभी कभी, कि नहीं 100%। आते ही नहीं है। बाकी जो 100 लोगों को रिजल्ट आ रहा था उसका क्या, 1-2 लोगों को नहीं आया, तो हो सकता है कुछ चैलेंजेस क्विकली। पहले तो मेरे पास पॉडकास्ट नहीं था, अब मेरे पास पॉडकास्ट है कि 11 रीजंस व्हाई वेबिनार्स फेल। तो मैं हम्म। अब क्या करता हूँ कि लोगों को वो पॉडकास्ट दे देता हूँ, कि अब हम्म। उसी में से रीजंस आने वाला है, बट मुझे मैनुअली जाके उनका वेबिनार ग्रो थ्रू नहीं करना पड़ता है। बट यही करेक्ट। चीज होता है, मैं लर्निंग करते रहता हूँ कि और भी बेटर कैसे करूँ। अब जाता हूँ कभी पेंजुंग के, मतलब लर्निंग के पर्पज से नहीं, लर्निंग के पर्पज से जा रहे हैं तो चलो ठीक है, इम्प्रूव करो, बट कभी कभी होता है कि नहीं, पहले होता था कि पेंजुंग के क्लासेस में जाओ, पहले उनसे सीख लेता हूँ फिर जाके डिलीवर हाँ करूंगा, हाँ इससे सीख लेता हूँ फिर हाँ, डिलीवर करूंगा। यही पॉइंट है, यही पॉइंट है कि खुद का कॉन्फिडेंस अगर कहीं पे भी कम हो रहा है ना, तो लोगों को लगता है कि अगर मैं किसी और से सीख लूंगा तो मेरे कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है वो कवर हो जाएगी। वो नहीं होगा। यू यस। ओनली लर्न हाउ यू विल डिलीवर बेटर व्हेन यू स्टार्ट डिलीवरिंग, व्हेन यू गेट फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स। आज मैं ही पिछले 1.5 महीने से कुछ 6 या 7 वेबिनार्स कर चुका हूँ। मुझे काफी हद तक वेबिनार्स के ऊपर फीडबैक अच्छा मिला है, बट मैंने अभी जो लास्ट वेबिनार किया था पर्सनली, मुझे उसका स्क्रिप्ट बहुत टाइट लगा, बहुत स्ट्रांग लगा। मुझे लग रहा है कि मैं उस वेबिनार को वापस देख के और अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, तो मैं अभी उस पे फोकस कर रहा हूँ। सो ओनली व्हेन यू, ऐसे ही अगर मैं वीकली मीटिंग्स करूंगा तो मुझे समझेगा कि मैं अपनी वीकली मीटिंग्स को मेरी कम्युनिटी के हिसाब से थोड़ा ट्वीक कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को वैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो यस। डोंट फोकस ऑन learning, focus on executing, and while you are executing, whatever gaps you realize, go and learn that gap, how to fill that gap. यस। एंड खाली एक ही चीज हम लोग को माइंड में रखना है, इस पॉइंट का सॉल्यूशन बेसिकली ये होता है कि मुझे लगता है कि आप जो सिखा रहे हो, आप अपने से बड़ों को नहीं सिखा रहे हो, मतलब अपने से हाँ ज्यादा ऊपर वाले लेवल को नहीं सिखा रहे हो। हाँ। आप वो लेवल का स्केल देखो, अगर 1 to 10 में, आप अगर 2 पे भी हो लेवल पे, मतलब एक्सपर्ट, मतलब 0 हो गया कि एकदम बिगनर है, 10 हो गया कि एकदम एक्सपर्ट है, पूरा वर्ल्ड का सबसे चैंपियन आदमी है। अगर आप 2 पे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 वाले को सिखा दो, 1 पे है तो आप 0 वाले को सिखा दो, 5 पे है तो Correct. 4 वाले को सिखाओ। तब एज लॉन्ग एज अपने नीचे वाले को सिखा रहे हो, तो क्या दिक्कत है, आप सिखाओ ना और और इम्प्रूव अगर करते आप, रहो। और इसी चीज के हिसाब से अगर आप लेवल 3 पे भी हो, तो लेवल 2 और लेवल 1 वाले लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपके गैप्स क्या है। और यस। आप लेवल 5 या लेवल 6 के साथ compete कर ही नहीं रहे हो, आप अपना ही एक मार्केट बना रहे हो, और आप जो सोल्यूशन दे पाओगे वो लेवल 2 और लेवल 1 के लिए इनफ है। यस। आप ऑटोमेटिकली ओवर टाइम ग्रो करते रहोगे। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट नो, स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव 10x, स्टॉप फोकसिंग ऑन what is it that is missing in your overall funnel. Focus on what you यस। already have, focus on what you already can deliver, and you're good to go. यस। एंड मनीष जी, बिफोर मूविंग टू सेकंड पॉइंट, एक और एग्जांपल मुझे याद आया, हाँ ये प्लीज। लेवल वाला, कि अगर मान लेते हम लोग का पॉडकास्ट कोई देख लिया, आज 18 एपिसोड कंप्लीट हो गया, तो अगर हाँ 15-16 एपिसोड तक भी कोई देख लिया, तो अगर वो 0 लेवल पे भी था, तो वो ऑलरेडी 2, 3, 4 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हम लोग काफी उसमें हद तक। एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया कि इसको टूल्स को ऐसे ओपन करना है, ऐसे हाँ करना है, वो नहीं बताया, बट माइंडसेट और वो सब टोटल इतना उनको एग्जैक्टली सब कुछ बहुत सारी चीज बता दी, जो आप क्या शायद कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना उसको, कि हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर लिए टोटल हाँ ए टू हाँ हाँ। जेड। तो हम लोग वो सब टोटल कवर कर लिए, तो ऑलरेडी वो कुछ लेवल से आगे है तो वो लोग भी टेक्निकली लोगों को सिखा सकता है, काइंड हमारा ऑफ। पिछले, हमारे ये 18 एपिसोड देख के कोई भी इंसान इतना नॉलेजेबल बन चुका है कि वो एक लेवल 5 का एग्जीक्यूशन कर सकता है। और यस। जहां पे भी अटक रहा है, सपोज अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे कंटेंट बनाए, उसके लिए और 5 वीडियोस देख ले तो उसका वो एरिया कवर हो जाएगा, वो गैप कवर हो जाएगा। यस, और प्रॉपर रोड सपोज, मैप मिल रहा है सबको। करेक्ट, जैसे
अगर वो हमारा ही ट्रैकिंग वाला एपिसोड देख ले कि एड्स को कैसे ट्रैक करना है, तो वो आपने जो भी नॉलेज शेयर किया है उसी नॉलेज के ऊपर वो और इन डेप्थ 4 वीडियोस देख लेगा, तो Yes. उसका वो भी गैप कवर हो जाएगा. एंड सी देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज अ पॉडकास्ट एंड नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ट्रेनिंग प्रोग्राम होता तो सबसे पहली बात, अभी तक हम 18 नहीं, कम से कम 100-125 एपिसोड तक का कंटेंट शूट कर चुके हैं, ज्यादा ही. उसके अलावा फिर हम उसमें और इन डेप्थ चले जाते हैं. लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि अगर कोई भी एक ये एपिसोड देख ले तो उसको पूरा मास्टर क्लास मिल जाए कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वाई कोचेस फेल के एस्पेक्ट में उसको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए, और उसमें फिर जो सबसे उसका बर्निंग पॉइंट है वो जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले. यस, तो वही है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ, लोगों को सिखाते जाओ, अटको मत, कहने का करेक्ट, मतलब. करेक्ट. ठीक है. सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि लोग इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि, मतलब इस पे तो मनीष हम एक वीडियो भी बना रहे थे, अभी गोपाल कृष्णन के इवेंट पे गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां जी. पे बोला गया था कि एड वीडियो बनाओ सब कोई. तो मुझे एड वीडियो में कोचेस का ये चैलेंजेस आ रहा था. इनफैक्ट उनका वो था टॉपिक, मतलब कि एक बात हो रहा था वहां पे कि कोचेस को सेल करने में डर लगता है, हम्म. इसीलिए वो 5 डेज का कॉन्सेप्ट निकाले हम्म. कि कोचेस का काम होता है पढ़ाना. और एक्चुअली वो ट्रू भी था कि हम्म. कोचेस का काम होता है पढ़ाना, कि उनको अपना स्किल आता है, मैथ्स आता है या फिर ड्राइंग आता है या फिर कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ भी अपने स्किल में वो एक्सपर्ट है, परफेक्ट. बट वो सेल नहीं किए कभी भी. हाँ, हाँ. तो इसलिए वो जो गोपाल जी थे वो क्या निकाले थे, वो जो कोच की, गोपाल जी, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है मतलब, और ठीक है क्योंकि हम लोग गोपाल गोपाल बोलते हैं उनको. करेक्ट. हाँ, तो वो क्या कर रहे थे, ये 5 डेज का बिंज मार्केटिंग वाला वर्कशॉप निकाले कि परफेक्ट. जाके 5 डेज में लोगों को वैल्यू इतना दे दो ताकि वो अपने आप बिक जाए, खुद से वो बोले परफेक्ट. कि ठीक है मुझे खरीदना है. बट फिर सही है. मेरा क्या मानना था वहां पे, मुझे लग रहा था कि बात सही है उनका, बट वहां पे भी हम लोग को 5th डे पे सेलिंग करना पड़ता है. ऑफ 1 to 1 कोर्स. आप वैल्यू दो तब भी सेलिंग करना पड़ता है. ऑफ आप कोर्स. वेबिनार फनल चला रहे हो तो वहां पे भी सेलिंग करना पड़ता है. तो ऐसा लगता है सबको कि सिर्फ वेबिनार फनल पे ही सेलिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अभी तक वेबिनार का ही बात किया पूरे पॉडकास्ट में. बट फैक्ट होता है कि हर फनल में चाहे कोई भी कर लो, इनफैक्ट लाइफ के हर स्टेज में सेलिंग करना पड़ता है. लोग तो एग्जांपल देता है कि बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को सेल करते हैं, मतलब पेरेंट्स को अपना आइडियाज सेल करते हैं कि मुझे ये चाहिए. तो वो चीज है, तो हर जगह सेलिंग करना पड़ता है. तो कोचेस हेसिटेट करते हैं कि नहीं, मुझे बस ज्ञान देना है, लोगों को सेल करना अच्छा मतलब. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है क्योंकि कल मैं ग्रामेटिकल का मिस्टेक वो देख रहा था, एक कोच का अटेंड कर रहा था मास्टर क्लास, जहाँ पे वो बता रहे थे कि जहाँ ग्रामर हो जाएगा गड़बड़ तो फिर वो हो जाता है कि मैं कोच, ठीक है जो भी, उसको इग्नोर मारते हैं अभी. बट यही हो रहा है, मतलब आई होप ऑडियंस समझ पा रहे हो कि सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल से आपको हेजिटेट नहीं करना है कि सेल करना ही नहीं करना, सेल करना ही पड़ेगा. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने सेलिंग पे, अगर आप सीख नहीं रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो अलग बात है, बट सीखना चाह ही नहीं रहे हो कि नहीं मुझे सेलिंग करना ही नहीं, मैं कोच हूँ, मुझे क्यों सेलिंग करना है, मुझे तो बस पढ़ाना है, अपने आप बिक जाए, तो नहीं बिक पाएगा. तो क्या आप भी बिल्कुल अग्री तो करोगे मनीष जी, इस बात पे सभी अग्री करेंगे? मैं जनरली बहुत, मतलब 2 घंटे के एपिसोड में 1.5 घंटे के बाद ये बोलता हूँ. ये हम्म. ऐसा एपिसोड है जहाँ पे मैं पहले 15 मिनट में ये बात बोलने वाला हूँ. हम्म. इफ एज अ कोच you don't want to sell, you are not a part of our audience, please stop यस. watching this episode. अपना भी टाइम बचाओ, क्योंकि हम आगे जो भी बातें करने वाले हैं, हर बात के लिए सेलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई टेल यू वन. मैंने एक वर्ड लिखा, अभी कुछ बोल रहे हो पंकज, बता दीजिए. नहीं नहीं, हम बस वही बोल रहे थे कि 100% अग्री कर रहे हाँ, हैं. क्योंकि मैंने अभी एक चीज लिखी, सेलिंग इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव बेस्ड कम्युनिकेशन. मतलब. आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप आपके प्रोस्पेक्ट को एक डिसीजन पे लेके आओ. दैट डिसीजन कैन ईदर बी अ यस और अ नो. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं अपने हर वेबिनार में बोलता हूं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मी टॉकिंग टू यू इज टू हेल्प यू मेक अ डिसीजन. दैट डिसीजन कैन बी अ यस और अ नो. हम्म. अगर नो डिसीजन है तो भी उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, दैट पर्सन इज चूजिंग नॉट टू गो अहेड विथ यू. और अगर यस है तो ठीक है, उसको बताओ कि ठीक है, ये आपको यस है तो ये पेमेंट दो और चालू हो जाओ मेरे कम्युनिटी में, बिकम अ मेंबर. यस. Selling is nothing but an objective based communication. So when Pankaj was saying कि एक बच्चा भी सेल करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो. अगर उसको खाना मिल गया, वो जीत गया, उसने सेल कर लिया. मुझे मैं बोर हो, आइसक्रीम चाहिए. आइसक्रीम चाहिए तो मुझे एक आइसक्रीम ला दो. मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे एक नया टॉय चाहिए तो मुझे एक नया टॉय ला दो. एज अ पेरेंट आपका
सेल्स क्या है, अगर आपको एक गलत ऑफर आ रहा है आपके बच्चे से, आपने उसको कल आइसक्रीम खिलाई थी, आज अगर वापस आइसक्रीम मांग रहा है, तो आपका सेलिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको ना नाराज करो और उसको एक और आइसक्रीम ना खिलाओ, ताकि उसको एक गलत आदत ना पड़ जाए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेलिंग है ये, ऑब्जेक्टिव बेस्ड कम्युनिकेशन है। और जॉब में जॉब में when you feel that you are absolutely perfect for this particular role that you are applying for, your objective is to get selected, among all the other people who are applying for the same job. Yes. So your objective is to get selected for a role that you know you are good for. If you're somebody who's just trying to apply for a job randomly, blindly, just to get a paycheck at the end of it, you're anyway walking towards a disaster. That's a completely different podcast episode. Yes. But if you are good at what you are applying for, you will very confidently sell yourself as a service provider and tell them, you know what, I can get this job done for you. I'm good at this role. I know this. I have these skill sets. These are the kinds of results that I can deliver, and I'm very confident about this. So hire me. यस एंड ये वन टाइम चीज नहीं है, ये आप जब जॉब ले लोगे तो फिर वापस से आप हाइक के लिए सेल कर रहे हो। जब आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, प्रोजेक्ट आइडियाज में अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं इस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उस तरह से नहीं करना है। और हर चीज में हो गया, मतलब इसमें भी होता है क्या मनीष जी, अगर हम पेशेंट है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर तो अपने आप को वो करेगा, प्रोडक्ट को सेल करा, बट हम अपने आप को सेल कर रहे हैं क्या वहां पे? जरूरत मुझे नहीं है ना आपको सेल मुझे करने की। मुझे क्यों ट्रीट करो? मुझे नहीं करना ही है वहां वहां पे पे तो। उल्टा है, वो रिवर्स है। वहां हाँ पे see, the moment you enter a dispensary of a doctor, the doctor has already sold to you. यस The doctor has already sold himself or herself as the service provider to you, that you are in pain, this is your pain point, this is my experience, this is my testimonial, this is why you should come to me, and this is why I'll charge you for the service. यस यस करेक्ट, क्योंकि वहां पे पैसा हम लोग दे रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर वहां पे सेलर है। Correct. राइट, So अग्रीड। the reason why coaches are failing is because they are horrible at selling. I'm clearly using this word. You suck at selling, you're horrible at selling, you don't want to learn how to sell, and that is not going to help your business. Boss, you will only get the opportunity to coach, you will only get the opportunity to bring transformation to people's lives when they take the decision to take money out of their pocket and put it into your bank account. यस एंड इनफैक्ट मनीष जी, एक तो सेलिंग मॉनेटरी टर्म्स हो गया कि कोच को अपना प्रोग्राम के लिए पैसा मांगना चाहिए, वो वाला टर्म्स में हो गया। बट दूसरा हो गया कि जब कोच उनको सिखा रहा है, तब भी तो वो आइडिया सेल कर रहा है ना। जैसे मेरे स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, फेसबुक एड्स में इतना पैसा लगाना चाहिए, 1000 रुपया पर डे। अब वो तो मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि नहीं 1000 रुपया पर डे क्यों लगाए, मैं उसको बताता हूँ कि नहीं इस तरह से लगाना है, ये बेनिफिट है, तो वहां पे भी मैं सेल कर रहा हूँ। आफ्टर सेलिंग ऑल्सो आई एम सेलिंग। You are going to keep selling for the rest of your life. You are going to keep selling every day. We are selling you this concept that you need to watch this episode till the end, because of which we've created 16 points. So if you, let's say we've created 10 points, if you watch the first point, I've sold 10% to you. If you watch 2 points, I've sold 20% to you, as in both of us Yes. together as a team, because it's a co-owned podcast. The idea is simple. The amount of points you watch, we've already made the sale to you. If you watch the entire episode, congratulations, you are a good customer. Yes. We've तो done 100% sale to you. हाँ, हर जगह सेल करना है, तो फिर पैसे मांगते समय सेल क्यों नहीं करना है? आपका माइक म्यूट हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं अभी आ रही है क्या बस? हाँ अभी आ रही है, आ रही है। शायद वो नीचे हो गया होगा। कोई हाँ, बात मैं वही बोल रहा था कि हर जगह जब सेल कर ही रहे, लाइफ के हर स्टेज में इतना एग्जांपल ले लिए, हर तरह का एग्जांपल ले लिए, हर जगह जब सेल करना है, तो वेबिनार में पैसे मांगने में क्यों हिचकिचाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मनी ब्लॉक है कि मैं ये पैसे मांगू कैसे, हक से। वो ही तो समझाना है, इसी के लिए। एंड इफ यू, this is not a pitch, but if you really are facing a lot of money challenges, if you feel that you cannot make a sale, you should not make a sale, it's against your personality, it's genuinely a money block, please find a link to Paycheck to Profit, and this is just the service that I provide. If you find some other money mindset coach who's helping you with that, please go to them, but please get yourself out of this money block, because it's very यस डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे भी आपको हक से सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग में आप मतलब जो सिद्धार्थ राजशेखर वो बोलते हैं कि सेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस दे रहे हो, ज्यादा लोगों को आपको रीच करना है, तो सेल करना ही पड़ेगा, because वरना it's a co-owned podcast. I ask you for your permission. Can I pitch myself for the next 2 minutes? करिए।
Thank you. If you are afraid of selling, it's because it's coming out of a money block. The money block is, maybe it's a borrowed experience where you feel that you're not good at sales. Maybe you feel that there's a ceiling that you cannot ask for money. Maybe it is coming out of this whole fear that if you ask for money, people are going to feel that you are too money oriented, or you are somebody who is very materialistic. All of these things are coming out of your head first, because of which they are getting projected in your webinar, in your sales process, because of which you are not selling with confidence or the conviction. Now, this is just one money block, and this one money block can find its root cause in 5 or 6 different factors. I have personally come up with 24 money blocks. This is probably the first time I'm outright pitching to you because it is important. Yes. Understand this. It is very important for you to sell, because unless and until you don't sell, you are not going to go ahead in this business. And that sales is not coming out of lack of sales experience. It's coming out of a money block, which is a completely different topic that you don't know about. If you want to know about more about money blocks, if you want to know more about money mindset, go below, find a link to sign up for Paycheck to Profits webinar. Come, give me your 90 minutes. I'll tell you everything that I need, that I know about money mindset, money blocks, and it will definitely help you. It's a no obligation webinar. You don't have to buy, but you'll at least get to know about the concept, follow Paycheck to Profit, and yeah, I am definitely sure it's going to help you a lot. But Yes. get rid of your money blocks for sure. ये एक आप अच्छा बात बताए, ये पिच करके अच्छा काम किया, क्योंकि इसमें मतलब दो चीज हो रहा है। एक तो जो हम लोग पॉइंट, मतलब जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था इससे, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। मतलब एक तो ये हो गया कि लोग सेल्स कर नहीं पाते हैं, और उसका मेन रीजन हो गया कि वो मांगना नहीं चाह रहे। तो मांगना नहीं चाह रहे पैसा, बट क्यों नहीं मांगना चाह रहे वो मुझे पता नहीं होता है कि क्यों नहीं मांगना चाह रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ हक से पैसा मांगो, ये करो वो करो, जो अभी भी हम लोग 5-10 मिनट से बात कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो शायद वही मनी ब्लॉक रहता है। रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, मनी ब्लॉक आएगा ही आएगा। और वो फिर सोचेंगे कि हो क्यों नहीं रहा है। मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं होता है सेलिंग। अगर लोग बोलते कि नहीं कर पाते, हम बोलते हैं दिक्कत कहाँ है, आप करो ना, सेलिंग करो ना। बोलते हाँ कर रहे, कोशिश तो कर ही रहे, बोलते तो है ही, स्लाइड्स में बना कर देता हूँ उनको, ये कर लो वो कर लो, बट अटक जाते कुछ कारण से। फिर बाद में कभी कभी वो धीरे से बताते हैं, पंकज जी मुझे मतलब सेलिंग अच्छा नहीं लगता है, मतलब अब पता नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, बट अच्छा नहीं लगता है। कैसे बताऊं, मतलब मेरी तो ये फील्ड है, तो अब हम पैसा कैसे मांगे। नेक्स्ट टाइम उनको बोलो, उनको एक मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल लिटरेसी कोच की जरूरत है। आपको 1-2 अच्छे लोग पता है, एक तो बहुत अच्छा पता है, उनके पास भेज देना इनको। यस डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी अभी तक क्या करता था उनके साथ, मैं उनको वो देता था कि अच्छा सेलिंग नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत उनको ज्ञान देता था कि क्यों करना चाहिए, जो क्योंकि आप लोगों को हेल्प कर पाओगे। या फिर मैं सेलिंग के लिए उनको और प्रिपेयर करता था, उनका वेबिनार इंप्रूव करवाता था। ये पॉइंट मेरा हमेशा मिस होता था। तो अब मैं ईमेल करूंगा आज ही लोगों को कि ये भी करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली वेलकम। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि नो फोकस ऑन सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग। अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड बना ही नहीं रहे। जैसे अभी हम लोग, मेरा खुद का, अब मैं खुद का ही बात कर लेता, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे अपने बारे में बात करेंगे। तो मेरा खुद का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत कम है, क्योंकि मैं हमेशा से बिलीव करता था कि ऐड चलाओ, लोगों को वेबिनार पे लाओ, पैसे कमाओ, एंड इट वाज वर्किंग ग्रेट, स्टिल वर्किंग ग्रेट। हमेशा ही होता है, मेरे कस्टमर्स के लिए भी होता है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, सबके लिए काम करता है कि क्यों ही मेहनत करना है। मतलब होता क्या था ना कि मैं वो बोलता था लोगों को कि आज क्या ऐड चालू कर देते, तुम्हारा कल से लीड आना चालू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक वेबिनार कर लोगे, मनी फ्लो होना चालू हो जाएगा, या फिर रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, लीड्स आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे, फिर उसको रिफाइन करते रहो। बट इस प्रोसेस में क्या होता था, कभी कभी 2-3 साल खिंचा जाता था। ये मतलब बहुत पहले होता था कि एक्चुअल में 2-3 साल नहीं, बट 1-1.5 साल उनका पार हो गया था, और वो अटक रहे थे और स्केल नहीं कर पा रहे थे। फिर कॉमन ऑब्जेक्शन आता था कि लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। फिर मैं पैटर्न देख रहा था कि जो मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स है, और जो मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स नहीं है, जिनका ऐड बहुत जल्दी अच्छा चलता है, जिनका ऐड अच्छा नहीं चलता है, दोनों में ये डिफरेंस आ जाता था। इनफैक्ट कभी कभी मैं अपने आप से कंपेयर करता था कि यार यार मेरा मेरा ऐड क्यों नहीं अच्छा चल रहा है, हमको नहीं आता है क्या। फिर से मेरे में भी अंडर कॉन्फिडेंस आता है। फिर फिर मैं डिफरेंस कंपेयर करता था कि हाँ, ये 2-4 डिफरेंस और मिलता था, बट ये कॉमन डिफरेंस हमेशा रहता था सब में, जहाँ जो जो फेल हो रहा है, कि वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि
क्योंकि मेरा काम रहता था लीड लाना वेबिनार पे, तो लीड तो हम बहुत अच्छे से ला देते थे, हाई क्वालिटी लीड ला देते थे, ऑटोमेशन करके अटेंडेंस भी पहुंचवा देते थे, अपना वेबिनार में भी उनका वेबिनार में भी। बट लोग सेल नहीं कर पाते थे, या तो सेल नहीं कर पाते थे, उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं था। तो ऊपर वाला जो रीजन है वो सब तो है ही, बट उनका सोशल मीडिया ब्रांड था। इफ आई टॉक अबाउट माई क्लाइंट विक्रांत, तो उनका न्यूमरोलॉजी पे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, मतलब 100-200 वीडियोस है। सिमिलरली बाकी क्लाइंट्स का भी 100-200 वीडियोस है उनका, हमेशा से, जब से हम उनको नहीं जान रहे तब से वो बना रहे हैं, वो ऑलरेडी वीडियोस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे थे तब से वो चला रहे हैं। तो उनका ऑलरेडी सोशल मीडिया प्रेजेंस था और मेरा नहीं था। तो फिर इसी के कारण धीरे 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 वो हो रहा था कि अच्छा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था बट बहुत अच्छा नहीं। बट रिसेंटली मैंने अपने चैनल में वीडियोस बनाना चालू किया 1-1.5 साल से, थोड़ा थोड़ा, बहुत हद तक नहीं बना रहे बट ठीक है। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया 14 डेज का, हाउ टू लॉन्च योर कोर्स, वो भी मैंने डाल दिया। फिर ये किया, वो भी डाल दिया। 7 डेज लीड जनरेशन चैलेंज जो भी था मैं डालते गया। मैक्सिमम कोर्स को फ्री भी बना के डालते गए कि चलो कुछ तो कंटेंट आए। फिर अभी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, 4 महीना हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 18 एपिसोड हो रहा है, 4-4.5 महीना। तो इसके वजह से एक्स्ट्रा अच्छा क्वालिटी का लीड्स आ रहा है इनडायरेक्टली। लीड्स तो हमेशा ही आते थे, बट अब जो लीड्स आते हैं मैं उनको कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ कि जाओ मेरा ब्रांड चेक करके आओ। कंटेंट का एक और फायदा हो गया ना, पहले मेरे पास कंटेंट नहीं रहता था तो लोग वो भी नजर से देखते थे कि ठीक है, मुझे पता है मैं बेस्ट हूँ इस फील्ड में, बट लोगों को नहीं ना पता। लोग देखेंगे कि नहीं, आप भी एक गुरु हो, आप सब बता रहे हैं, तो फेक गुरुज वाला कॉन्सेप्ट लगा देते थे यहाँ पे कि मैं कैसे बिलीव कर लूं। जो बिलीव करके आगे बढ़ जाता था तो वो तो खुश है, उनको रिजल्ट हो जाता था, मिल जाता था। बट बाकी जो बिलीव नहीं किया उनका क्या। तो अब मैं उनको बोलता जाओ मेरा पहले सोशल मीडिया कंटेंट मैं पैसे का बात ही नहीं करता, बोलता हूँ पहले तुम जाके चेक करो, तुम मेरे बात करने के तरीके से, मेरे कंटेंट से, मेरे स्टाइल से रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि सब नहीं रेजोनेट करेंगे सबसे। तो मैं बोलता हूँ कि 100 में से सिर्फ 10% लोग चाहिए मुझे जो रेजोनेट करते हैं मेरे से। ऑफ कोर्स अलग अलग तरह के लोग होते हैं, Of course, हाँ। तो जो मेरे से रेजोनेट करते हैं फिर मैं उनसे आगे बात करता हूँ बिजनेस का कि ठीक है अब ये कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस ऑफ कोर्स बेटर होता है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है इसमें। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या कुछ? ये मतलब इसका है ना, हम्म। हमने पहले ही एक पॉडकास्ट खास किया हुआ है। इफ यू डोंट नो, वी ऑलरेडी हैव अ फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट ऑन सोशल मीडिया कंटेंट एंड यस। इट्स इम्पोर्टेंस। इसका मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एटलीस्ट इन द रीसेंट टाइम्स, वी आर शूटिंग दिस इन जून 2023। Very recently I've spoken to multiple coaches and everybody is complaining about one thing, which is lead cost going through the roof. Probably हम्म। Meta is changing something in the advertising platform, or there are multiple people, brands trying to capture attention of the same audience. One set of audience one set of coaches who's very happy is are those people who already have a lot of social media content on YouTube, on Instagram, where they are getting discovered by new audience daily, because of which they are getting a steady flow of organic leads on daily basis. अब इसको कैसे बीट करोगे पंकज, मुझे बताओ ना। जिस इंसान को आज हमको 50, 100, 125, 150, 200, 500 रुपया एक लीड को देना पड़ रहा है, हम्म। वर्सेस एक दूसरा कोच है जिसके पास 50 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, क्वालिटी कंटेंट, जो हम्म। हर हर दिन ट्विटर और लिंक्डइन पे क्वालिटी कंटेंट डाल रहा है, जो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा है। उसके ब्रांड को हर दिन कोई ना कोई डिस्कवर कर रहा है, उसका रील हर दिन शेयर हो रहा है, हम्म। उसका व्हाट्सएप के ऊपर हर दिन कोई ना कोई कुछ अलग फॉरवर्ड जा रहा है, कोई यूट्यूब का वीडियो शेयर हो रहा है अपने ग्रुप्स में। यस। उसके वजह से उसको हर दिन 10 लीड्स फ्री मिल रहे हैं। 100 रुपए के हिसाब से भी लीड पकड़ो तो उसका 1000 रुपया हर दिन बच रहा है। डेफिनेटली। एंड बहुत बार हम लोग बात किए पहले कि कभी फेसबुक अकाउंट आपका बैन हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी गूगल एड से ट्रैफिक नहीं आ रहा, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि एड कॉस्ट बढ़ गया है। तो उस समय उसके पास हजारों सोर्स ऑफ ट्रैफिक है। करेक्ट। ऑर्गेनिक जरूरी थोड़ी कि खाली यूट्यूब में डालना है, वो हर जगह डाल रहा है। आप बता रहे हाँ, ट्विटर पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, हर जगह थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। तो खुद से इंक्वायरीज आ रहा है ना उसके पास बैठे ऑफ बैठे। कोर्स। और देयर इज नथिंग बेटर देन एन ऑर्गेनिक लीड। आई एम प्रोबेबली, मतलब पंकज को मैं थोड़ा सा हर्ट करूंगा यहाँ पे, एड से जो इंसान आएगा वो एक स्ट्रेंजर है, वो इन्फ्लुएंस हम्म। हुआ है। बट जिस इंसान ने आपका वीडियो देखा है, जो जो इंसान आपको पहचानता है, जो इंसान आपके वेबिनार में आने के पहले ही आपको जानता है ना, उसका हम्म। कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं, हर्ट होने वाला बात नहीं, ये तो फैक्ट है। मैं भी बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे पास कॉल्स आते हैं, क्लाइंट आते हैं, कभी मान लेते हैं सेल्स कॉल कभी करते हैं हम,
तो वो कन्वर्जन रेट में पूछता हूँ कि आपका करंट कन्वर्जन क्या है, तो बोलते हैं कि लगभग अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो 5-7 लोग तो खरीद ही लेते हैं। बोले अरे तेरे के 50-60-70% कन्वर्जन, मतलब 1-to-1 सेल पे। हाँ। हम बोले नॉर्मली तो 10-20% होता है, तो 50-60%, और कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि लगभग सभी खरीद लेता है। अरे वाह। तो फिर मैं उसको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं वहाँ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता हूँ कि हम लोग जब लॉन्च करेंगे आपका ये सब फनल वगैरह, तो आपका कन्वर्जन इतना होने वाला है, मतलब मे बी 10% होगा, 12%, 15%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चल रहा है 1-to-1 सेल्स का, मतलब एवरेज पकड़ लो कि 10-20% के आसपास चलेगा। बोलता है इतना कम क्यों, मेरा तो 70% आता था। तब हम उनको समझाते थे ये 70% ये आपका जानने वाला लोग है, और फेसबुक एड में स्ट्रेंजर को बुला रहे, दे डोंट नो यू एट ऑल। और वर्सेस आपको हमेशा से फॉलो कर रहा है, हो सकता है वो आपका बैचमेट हो, आपको जान रहा हो सकता है कोई कुछ हो। तो फर्क तो पड़ता ही है ऑर्गेनिक लीड का। मेरे खुद के केस में जो मैं जब से पॉडकास्ट चालू कर रहा हूँ, वहां से कभी कभी मैंने, लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट दैट, कि आई एम प्लानिंग टू मिनिमाइज, एंड मैं अभी नया क्लाइंट तो ले ही नहीं रहा हूँ एजेंसी में। करेक्ट। ये तो फैक्ट है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मैं उसी को सर्व कर रहा हूँ। तो जो नई इंक्वायरीज आती है तो उसका क्वालिटी देखकर मुझे पता चलता है ना कि वो पॉडकास्ट देख कर है तो कितना क्वालिटी ऑडियंस है, मतलब वो ऑलरेडी, मतलब वही हो गया ना, मतलब एक नया ब्रांड आया मार्केट में, और एक हो गया कि आप पहले से जान रहे हो कि वो कार का ब्रांड है, ये लग्जरी ब्रांड है, मैं उधर जा रहा हूँ, मुझसे लेना है। करेक्ट। करेक्ट। आईफोन का बात कर रहे हैं तो आईफोन का पता है आपको, वर्सेस जो हम लोग कोई नया फोन का ब्रांड कोई लॉन्च कर रहा है उसी टाइप का चीज। तो 100%। मैटर तो करता ही ऑर्गेनिक। हजारों 100। हजार रीजन है इसका, मतलब खाली एक दो रीजन तो हम लोग बात कर रहे हैं। उस पॉडकास्ट में तो हम लोग मल्टीपल रीजन के बारे में पूरा इसी टॉपिक पे ही पूरा बात किए कि क्यों करना चाहिए ब्रांडिंग। तो वो है। Social media content is going to be the differentiator between successful coaches and coaches who fail. And I can guarantee you this. I'm saying this in 2023. By हम्म 2026, coaches who do not have good social media content will start leaving the industry, even if they have very good community, because it is inevitable for you to keep relying on ads to get you quality leads forever. After one point of time, it is going to become financially inviable to हम्म focus on growth only via only via ads. I am never going to say you should not do ads. You definitely need ads, not want ads. हम्म Need. But when you have good quality content, your lead cost will be low. When you have good quality content and the traffic coming to your website, your newsletter is already existing, that lead is that Facebook pixel on your website is mature enough to know who to show your ads to. So do not ever ignore social media content. यस, सो ये पैरेलली चलते रहना चाहिए। Of course, हम्म 100%. Do not stop. Do not stop investing on ads ever. हर दिन आपके एड्स चलते रहने चाहिए और हर दिन आपका कोई ना कोई कंटेंट आना चाहिए। ये दोनों साथ में पैरेलली चलते रहने चाहिए। पीरियड। यस, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन मल्टीपल थिंग्स। हो गया कि निश पे क्लैरिटी नहीं होता लोगों का, टारगेट मार्केट कौन है वो क्लैरिटी नहीं होता है, रिजल्ट क्या दे रहे लोगों को वो पता नहीं है। तो ये तो कॉमन रीजन हो गया कि अटक जाते हैं लोग कि चलो कभी ये निश पे काम कर रहे हैं, कभी वो निश पे। कोई कोई लोग सोचते हैं कि निश इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसके बारे में भी हम लोग, बेसिकली हम लोग हर पॉइंट के बारे में पॉडकास्ट टेक्निकली किए हुए, बट आज हम लोग समराइज करके बता रहे टोटल मेन मेन करेक्ट। रीजंस। करेक्ट। सो निश के बारे, मतलब क्लैरिटी होना जरूरी है बिजनेस में, आपको पता रहना चाहिए। उससे क्लैरिटी से क्या होता है कि आपका बिजनेस और अच्छा चलेगा। आपको 100। जब पढ़ाने जा रहे हो तो पता रहना चाहिए ना किसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। करेक्ट। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाने, फॉर एग्जांपल मैं अपना बात कर लेता हूँ कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाता हूँ, या फिर इजी वे में बोल देता हूँ कि लोगों को, कोचेस को अपना वेबिनार कंडक्ट करने सिखाता हूँ कि कैसे अपना कोर्सेज को सेल कर सके। हम्म। बट उसमें क्या क्या पार्ट हो गया, अगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कोर्सेज कैसे सेल करना है, तो टेक्निकली अगर निश वगैरह के बारे में बताते हैं उसको। फिर मेन कंपोनेंट एक और हो गया फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं। हम्म। फिर हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, हम्म। लैंडिंग पेजेस कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हो गया हमारा वेबिनार्स कैसे करते हैं। तो ये सब हो गया। तो ये क्या खाली कोचेस को काम आएगा, नहीं, ये
एड चलाना, वेबसाइट बनाना, ये पूरे दुनिया को काम आ सकता है। करेक्ट। स्टूडेंट्स को भी काम आ सकता है, कोचेस को भी काम आ सकता है, डॉक्टर्स को काम आ सकता है, हाउसवाइफ्स को, मतलब हाउसवाइफ के लिए वो हो गया कि वो नया स्किल सीख कर इनकम जनरेट कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी, हर दुनिया के लिए, हर चीज के लिए काम आ रहा है। स्टूडेंट्स उस पर जॉब ले रहा है, जो एग्जिस्टिंग जो जॉब कर रहा है वो अपना जॉब को चेंज कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया कि मुझे क्लैरिटी होना चाहिए। मतलब अगर ये भी कर रहे, पूरा दुनिया के लिए भी कर रहे, ब्रॉड और वाइड निश वाला वो अलग हो गया कि ब्रॉड रखना है कि नैरो रखना, बट एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं किसको सिखा रहा हूँ। तो मेरे केस में अभी राइट नाउ है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर डिजिटल बिजनेस ओनर्स को सिखाता हूँ। करेक्ट। तो उससे क्या हो जाता है, क्लैरिटी होने से, कि मुझे पता है कि अंदर जब वेबसाइट में आए, वो मेरे वेबिनार में प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, तो मुझे उसको क्या क्या पॉइंट के बारे में बात करना है, उनका पेन पॉइंट्स क्या क्या है, उनको करेक्ट। क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से। उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको अपना लीड ज्यादा चाहिए, उनको अटेंडेंस चाहिए वेबिनार में, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम का सेल्स करे, कोचेस के बारे में अगर बात करें तो। बट करेक्ट। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोचेस से बात करना है, मैं पूरे दुनिया से बात कर रहा हूँ, कि मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं वेबिनार में उतना कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं दे पाऊंगा ना, किसको दे रहे नहीं दे रहे। तो करेक्ट। इस पे भी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम की क्लैरिटी हो, बट चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट निश होता है, परफेक्ट टारगेट मार्केट होता है, कुछ भी लीजिए, चालू कर दीजिए और फिर इंप्रूव करते रहिए। एब्सोल्युटली। तो तो आपका क्या कहना है इस पे? मुझे सिर्फ एक तरह से के कोचेस से बहुत तकलीफ होती है, जिनको अपना नीश का इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। पता है, ऐसे कोचेस होते हैं जो हर 6 महीने में अपना नीश बदलते हैं। हम्म। 6 महीने पहले क्रिप्टो अच्छा चल रहा था, क्रिप्टो में बहुत सारा है पैसा, तो मैं क्रिप्टो चला लेता हूँ। फिर हम्म। अभी उसके बाद में ट्रेडिंग बहुत बढ़ गया था इंडिया में, तो ट्रेडिंग के ऊपर और कोर्सेज कर रहे थे। अभी वो ही कोच जो 1 साल पहले क्रिप्टो और ट्रेडिंग कर रहा था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा है। मुझे सिर्फ समझ गया। इन कोचेस से मेरे को, मतलब ऐसे वर्ड्स में जनरली यूज नहीं करता हूँ पॉडकास्ट में, हम्म। लेकिन इन कोचेस से मुझे घिन आती है कि भाई, हम्म। एक, तुम है ना, इस बिजनेस को हल्के में मत लो। The brand that you can create out of your coaching business is going to be a very strong brand. So figure out something that you really like to do, love what you do, and उसके बेसिस पे ही एक नीश बनाओ, उसी का एक टारगेट मार्केट चूज करो, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। इंडिया इज अ abundant मार्केट, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है इंडिया। हम्म। जस्ट गेट इनटू इट, फिगर आउट समथिंग। मैं इतने कोचेस को जानता हूं जो 2-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, और जब मैं उनके साथ उनके नीश के बारे में बात करता हूं, आई डोंट सी द डेप्थ। जैसे आपके साथ बात करता हूं, आपको क्लियरली पता है। आई टेल यू, एज ऑफ 2023 पंकज डज नॉट वांट टू टॉक टू ई कॉमर्स ब्रांड्स। व्हाई? बिकॉज उनका हम्म। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऐसा नहीं कि नहीं आता है उनको, वो आता भी है, बट वो बहुत अलग माइंडसेट लगता है उसके लिए। Pankaj does not want to talk to brands which are, those traditional mom and pop stores, जो आपके घर के आसपास का जो किराने का दुकान हो गया, या आपके हम्म। आसपास का जो अपैरल स्टोर हो गया। उनको भी जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग, उनको भी जरूरत है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, बट पंकज डज नॉट वांट टू टॉक टू देम। व्हाई? एक क्लैरिटी, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, पता है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है। आपको जब तक अपना ये स्ट्रेंथ नहीं पता है ना, यू आर गोइंग टू कीप फॉलोइंग फॉर multiple other topics that we are going to talk about through this episode. So please get as clear as possible. Without clarity, you will not be able to go ahead. बिल्कुल। You will fail as a coach for sure. बिल्कुल। तो आप अच्छा काफी एग्जांपल लिए। मैं अपने निश में रिफाइन करके बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में और उसको क्लैरिटी कैसे लाए। आप तो एग्जांपल पे वैसा ले लिए थे कि कोई क्रिप्टो बेच रहा है, तो कभी एआई बेच रहा है, तो कभी कोच बन गया, तो कभी जाके ई कॉमर्स का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू कर लिया, कभी कुछ, मतलब एकदम अनरिलेटेड बिजनेस। अनरिलेटेड बिजनेस भी लोग करते हैं, बट आपका एक, मतलब एक होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो वो सब बिजनेस, पूरा कनेक्टेड, कहीं तो कुछ तो कनेक्शन दिखे। करेक्ट। जैसे आप मेरा जैसे ले लिए मनी माइंडसेट, उसमें मैं आगे जाके फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करूंगा, तो अपना पैसिव इनकम के बारे में बात कर सकता हूँ, हम्म। सेल्स के बारे में बात कर सकता हूँ, तो बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू माई एरिया। आई कैन हम्म। ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट शेयर मार्केट्स, आई विल टॉक टू यू अबाउट ट्रेडिंग, बट वो आगे जाके अलग लेवल्स में होगा। बट यस। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मनी माइंडसेट के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है तो मैं अचानक से उसको छोड़कर सेल्स कोच बन जाऊंगा। नो, आई विल टॉक यस। अबाउट सेल्स, आई लव सेल्स एज अ कॉन्सेप्ट, एंड आई नो दैट आई हैव decoded sales on a very different level, but I'll either do a mastermind for it, but I'll never stop being a money mindset or a financial literacy coach, because that is my core.
That is what makes me happy. यस, करेक्ट। एंड फिर इसको लोग वो भी करते हैं ना कि लोग उसको डाइवर्सिफाई करवाने बोलने का नाम दे देते हैं कि वी शुड हैव मल्टीपल बिजनेसेस, ये वो। तो एक बिजनेस सक्सेसफुल तो बनाओ, पहले कुछ लेवल तक तो ले जाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आईटीसी ने डाइवर्सिफिकेशन किया था 80 साल के बाद। 80 साल तक उस कंपनी ने सिर्फ टोबैको बेचा, सिगरेट्स बेचा, टोबैको प्रोडक्ट्स बेचा। तब जाके उन्होंने हॉस्पिटैलिटी, आईटी और एफएमसीजी और बाकी सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया। मैरिको गॉट इनटू डाइवर्सिफिकेशन आफ्टर डेकेड्स ऑफ सेलिंग पैराशूट ऑयल। तो आप कौन होते हो यस, भाई जो 3 साल में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है? यस। इनफैक्ट मैं खुद का भी बात कर लूँ तो मैं 4-5 साल से अभी कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ और कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं चलो थोड़ा वाइड करता हूँ इसको। बट अभी भी मुझे लग रहा है नहीं, इसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड में। पहले मैं इसको कैपिटलाइज करता हूँ पूरा, जब इस पे सैचुरेट हो जाएगा तब जाके इसको थोड़ा सा और वाइड कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ओपन। यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू पंकज वेयर इट इज ड्यू। मैंने पंकज को ट्राई किया था कि भाई आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर इतना तगड़ा नॉलेज है, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, वाइडन द स्कोप ऑफ योर सर्विसेज। He tried doing that for a week, but he came back to me and told me, no, Manish, although I know I can help e-commerce businesses also, although I know I can help mom and pop stores also, but I see that the scope of help that I can do for digital business owners is so strong, it's so wide, and the market is so huge that I don't want to complicate the market. And I was यस। like, I'm impressed. तो ये हाँ, होता है, ये होता है एक कोच जिसको अपने नीश की, अपने टारगेट मार्केट की, अपने एंड रिजल्ट ऑफ द कस्टमर का पूरा क्लैरिटी है। ये फर्क यस। पड़ता हाँ, क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है मुझे रिजल्ट्स देना। अगर ई कॉमर्स है। मैं को स्विच कर लूंगा तो मैं उसका एड चला सकता हूँ। बट अब मुझे समझना पड़ेगा कि उसका अच्छा लॉजिस्टिक्स का भी इशू आ सकता है, उसका बिजनेस में ये भी इशू आ सकता है। बट करेक्ट अगर मेरे पास आज कोच आता है तो वो जो बोलते हैं ना कि नींद में भी बैठ के बता सकता है कि टोटल, हाँ आपके बिजनेस में, वो बोलेगा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं बताऊंगा अच्छा ये स्टेप में इशू है आपका, खत्म। करेक्ट तो वो चीज होता है। ठीक है। करेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है नॉट इनफ एक्सपीरियंस इन द जर्नी दे आर सेलिंग एज देयर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस नहीं है तो। एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब 5 हफ्ते का एक ट्रेडिंग कोर्स कर लिया, 5 ट्रेड्स कर ली और बन गए अब हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग एक्सपर्ट कोच। हाँ, ये कल आए थे मेरे साथ। मतलब मैं अपने वेबिनार का लीड चालू किया ना रिसेंटली, हाँ ऐड चालू किया हूँ। तो कल मैं लोगों को कॉल कर रहा था, अपने लीड्स को रैंडमली, कि चलो देखते हैं ऐड कैसा चलता है पर्सनली। तो एक जन से बात की है तो लगभग 1-1.5 घंटा बात हुआ मेरा। मतलब कभी कभी फ्लो में चल जाता तो बोले ठीक है चलो, फ्री थे, वो भी आपके फ्री साथ थे। मेरे को ये सारी चीजों से भी शौक भी नहीं लगता है। हाँ, तो फिर वहां पे क्या हुआ कि वो बता रहे थे कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, मतलब कुछ बैंक वगैरह में होंगे इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड में। तो वहाँ इंश्योरेंस सेल करते थे। तो उसका मतलब बहुत सारी चीज बात हुआ, बट उसका क्रक्स यही था टोटल कि वो बिजनेस कोच बनना चाहते थे। तो हम बोले ठीक है, बनना चाहिए, कोई दिक्कत कहाँ है। तो फिर हम उसमें थोड़ा सा अच्छे से प्यार से बहुत सारा चीज बात की है। फिर वापस से उनसे लास्ट में पूछे, क्योंकि वो हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो टाइम दे के मुझसे बात कर रहे थे, वो मेरे लीड थे। फिर बट लास्ट में मुझे थोड़ा सा हल्का सा वो चिढ़ मचने लगा, क्योंकि मैं जब उनसे पूछ रहा था कि आप बिजनेस कोच बनना चाह रहे हैं, ठीक है, विवेक बिंद्रा टाइप से बनना चाह रहे हैं, राजीव तलरेजा जैसे बनना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। बट आप किसको हेल्प किए, मतलब फील्ड से रिलेटेड कैसे है। तो बोले पंकज जी आप समझ नहीं रहे हो, मैं ऑलरेडी से इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ पहले से। तो बिजनेस कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे। मैं बोला आप कर रहे हो क्या, बैंक में काम करते हो? बोलते जॉब कर रहे हैं मैं। और तो फिर जो भी उनका एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहे थे, तो फिर वो ज्ञान दे रहे थे कि नहीं मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं इनबॉर्न कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ हमेशा। तो हम बोले ठीक है, कंसल्ट करते हैं, मान लेते हैं। तो आप किसको सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी किसको दी है? बोले नहीं वैसा होता ही नहीं है, सक्सेस स्टोरी नहीं दी, बट मैं रिसर्च बहुत कर रहा हूँ 4 साल से, मुझे इस फील्ड का बहुत ज्यादा नॉलेज है। मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं मिला। हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम सॉरी, अगर आप देख रहे हो वो हाँ ऑडियंस वो आप हो नहीं तो वो नहीं थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपसे यही था, मतलब मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आपका क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो मैं, अगर आप देख रहे हो तो आप इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज करिए, कुछ भी कर रहे हो तो, क्योंकि आपका उसमें एक्सपर्टीज है। बिजनेस कोच बनना कोई दिक्कत नहीं, आप बनो बिजनेस कोच। बट पहले प्रैक्टिस तो करो उस बिजनेस कोच के बारे में। मतलब कोर्सेज ले लिए, चलो ठीक है, बहुत जन का हो सकता है कोर्सेज लियो, कोर्सेज लेके अप्लाई करिए कहीं पे, मे बी फ्री में ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, 2-4 लोगों को। कहीं रियल लाइफ केस स्टडीज तो लाइए, फिर ना बिजनेस कोच बन पाओगे। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। तो
इस टाइप के कोचेस से मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ क्लैरिटी नहीं है, उनको एक्सपर्टीज नहीं है अपना, लेकिन वो बस दिखा रहे कि मुझे एक्सपर्टीज है, मान रहे कि एक्सपर्टीज है, और फिर वो उस मतलब उनका जस्टिफिकेशन ये रहा रहता है कि नहीं, अचानक से कोई बड़ा थोड़ी बनता है, धीरे धीरे बनता है। तो बोले धीरे धीरे ही बनोगे, लेकिन अभी तक कुछ तो करोगे ना आप स्टार्टिंग में, पहले फ्री में तो करो, अब डायरेक्ट क्यों लॉन्च करना चाह रहे हो? फिर यही सब चल रहा था, बट मुझे भी क्लैरिटी नहीं मिला। तो कुछ ऐसा ही होता है ना मनीष, आप भी यही कुछ कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस मेरा कॉन्वर्सेशन के बारे कहना में? है आपके लीड्स बहुत लकी है कि वो आपसे बात करते हैं, हम्म। क्योंकि ये महाशय अगर मुझसे बात करते तो मेरा बात करने का तरीका इतना अलग होता आपसे। क्या बोलता, मतलब पता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप ऐसे बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में पता कौन सा सीन चल रहा था, एक पता है, एक रियलिटी टीवी शो है जिसमें एक टकला जज बैठता है इंटरव्यू के टाइम पे और बोलता है तू तू बनेगा। समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ। मेरे को किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम नहीं लेना है। तू फोड़ी बनेगा, तेरे को लगता है तू ये काम कर सकता है? मैं ऐसा बात करना चालू कर लूँ कोच के साथ कि देखिए, इंश्योरेंस सेल्स इज अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री टू बी इन। आपको सेल्स आता है। मन में मेरा वही चल रहा था, मतलब उनका नाम नहीं चल रहा था, बट मन में गुस्सा लगता है कि नहीं, बात वैसे ही करो, बट कर नहीं पाते, नहीं क्योंकि हाँ, आप तो मेरे वही को फर्क है। रिस्पेक्ट कर रहे, टाइम दिए मेरे आप को। में और मेरे में ये फर्क है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बात करने लगे ना, तो मेरा वो ऐसा सभ्यता टूट जाता है। भाई भाई तू ठीक है, अब आप लीड नहीं हो, अब तू एक कोच है जिसको कोई अंदाजा नहीं है, अब मैं तुझे बताऊंगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, वो बहुत लकी है कि उसके आप उसके लीड थे। पर ठीक है, आई विश यू ऑल द सक्सेस डूड, जीरो जजमेंट, बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, you are an insurance person, you've done a lot of good sales, you can consider being a sales coach, because that's a fabulous place to be in. I've already confessed that I wanted to be a sales coach at one point of time. I was this close from dropping financial literacy and money mindset. I wanted to look into sales, but sales coach, sales as a skill set is very 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 different from running a business. A business starts with solving a problem, setting up a brand, setting up a product, marketing that product, selling that product, delivering that product, customer service, growth, improvement, getting into affiliate sales, getting into referral sales, building a brand consistently, growing it more and more, and then getting into collaborations, getting into networking, getting into other aspects of how to build a legacy brand that can grow, getting into staffing, getting into HR, getting into finance management, getting into accounting. If you're not scared by now, you probably are very, very, very apt in becoming a business coach. But if you don't know about 8 of the things that I've told you, if you're not an expert on 8 of those things, you're not fit to be a business coach. And that is what I'll tell you. और एक्सपर्ट क्या होता है, मतलब कि मान लेते वो कोई कोर्स कर लिए किसी से, क्योंकि वो जैसे उनके केस में उनका क्लेम था कि मैं 3-4 साल से ये रिसर्च ही कर रहा हूँ। होता है कि चलो इस फील्ड पे वो कहीं से तो चालू करेंगे, मतलब अब उनको छोड़ देते हैं, जनरल हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं से तो कोई चालू करेगा, तो वो 3 साल से नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, कोर्सेज पे कोर्सेज अटेंड कर रहा है। तो अब वो कैसे बन सकता है, अगर वो बनेगा तो बिजनेस कोच, अगर ये देखिए, गाइड करना चाहो तो मतलब रियलिस्टिकली कि ठीक है, ऐसे ऐसा करना है। so first of all, if I were to mentor this person, I would tell them not to call themselves a business coach at the start. I would tell them, अगर आपको business coach बनना है, eventually that is your end goal, we will create a journey for you where you will end up becoming a business coach. So hello, whoever is watching this, whatever I'm going to share right now, if I were to do a one-to-one coaching for you, I would charge you a big amount to share this perspective with you, customized to your business, customized to your niche. So just take it away, get it for free in this episode. The only thing that both Pankaj and I ask out of you are two things. One, if this helps you, if what I'm going to tell you in the next few minutes helps you, do not forget to subscribe. Show us some gratitude. The only thing that we're asking you is to subscribe. कमेंट भी। Like this video. Tell us what did you learn, and share this video with somebody, because we are giving our time and that's the only एब्सोल्युटली। thing that we are asking out of you. Only thing. So forget about that insurance person. I'm giving this blanket to anybody who wants to become a coach in any niche. Get experience, get full knowledge. So let's say that insurance person feels that he has a lot of expertise, नॉलेज।
expertise and knowledge based out of all the research that they've done. Go and help 5 businesses for free. Get results from them. Get those coaches to tell you a thank you कि thank you आपने मेरी help की. मनीष जी, मैं यहाँ हाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे जर्नी में मेरा ब्रेक हो रहा है। हाँ यहाँ पे मान लेते मैं कोच हूँ, वो रिजिड टाइप का कि नहीं मुझे बिजनेस कोच बनना है, मुझे ज्ञान है, मैं हाँ फ्री में नहीं देना चाहता हूँ लोगों को, फ्री में नहीं सिखाना चाहता, तो अब मैं क्या करूँ? टाइम की वर्थ होती है ना, मैं क्यों सिखाऊं फ्री में? उनका ये भी देखिए, एक आर्ग्यूमेंट था। कहीं ना कहीं आपको अपने कोच के ऊपर, अपने मेंटोर के ऊपर इतना तो भरोसा होना चाहिए ना. हम्म। आप एक सिंपल बात समझिए. नाउ I'll give you a perspective behind the scenes which most people will not know. हम्म। I am mentoring Pankaj to become a coach, to start this parallel coaching business of his, because his knowledge is phenomenal when it comes to understanding the ads platform of Google and Facebook. So I know the amount of help he can do for any digital business owner. हम्म। And on the contrary, he is helping me, he's mentoring me when it comes to me managing my ads and my performance marketing for my business at Paycheck to Profit. Okay. Now I'll tell you what happens. We have a lot of arguments. We have a lot of conversations, but all of those arguments and conversations don't happen to gauge if the other person is talking the truth, if the other person is acting like an expert. All of those conversations happen to understand how will taking this step improve my business, what can I expect, what is going to be the long-term benefit of this decision, and what are my alternatives. It's on a very healthy level. यस। Okay. Never has there been a conversation where the vibe has been तू होता कौन है यार मुझे सिखाने वाला. It has never been in that zone. So a coach also has to be adaptable. A coach also has to be open to learning. If you are somebody who calls yourself a business coach and you're not open to having a conversation with another person who is been in this industry, who is your peer, what am I or Pankaj going to gain if you end up becoming 10x bigger? हमको क्या मिलेगा? And what are we going to lose if you perish tomorrow in this business? सब्सक्राइबर बन जाओ, पेरिश हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे को एक सब्सक्राइबर मिल गया. But understand this, we never want any coach. See, the reason, again, I have said this multiple times, the reason why we started this podcast is because today in 2023, it is the easiest business to start. Coaching, digital marketing, freelance, or any sort of a marketing agency, these are the businesses with almost zero entry barrier, zero. Yes. And that is exactly why it is the easiest to fail in this industry. Easiest. क्योंकि आप थोड़ा आपने इतना भी स्लिप किया ना, आपको टेक ओवर करने के लिए, आपके क्लाइंट्स को टेक ओवर करने के लिए, आपके कंपटीशन को कोई इतना बड़ा गैप कवर नहीं करना, उनको सिर्फ वो इतनी सी सर्विस को इंप्रूव करना है. True. आज सपोज पंकज मुझे बोलते हैं कि दे कैन गेट मी अ लीड एवरेज ऑफ लेट्स से 100 रुपीज और लेट्स से 150 रुपीज पर लीड. And if somebody else comes and gives me the exact same prospectus and tells me, you know what, Pankaj is promising you at 150 rupees per lead, I can guarantee at 125 rupees per lead, and I have 20 more people who have gotten such lead costs from my business. Okay? Why will I go to Pankaj? I will go to this other person. Then Pankaj will then again have to compete and lower the lead cost from 125 to let's say 100. But that is going to keep becoming a cycle, which is a cycle in every mom and pop store in the country or in the world for that matter of fact. However, when you create a good brand, when you show long-term commitment to your clients, when you show that you are genuinely an expert and you have 20 case studies, those 20 case studies is every case study is worth its weight in gold. When you have that to support your business, only and only then can you create a coaching brand which nobody can compete with. Of course, there will be some people who will still go to other coaches, but that's perfectly okay. But your community is going to be such a strong community that nobody is ever going to leave it.
and that's True. what will. So again, going back to those coaches who don't have enough expertise, please go and do free service for 3 to 4 to 5 clients. If you are so arrogant, if you are so egoistic that you don't want to give anything to anybody for free when you are still a starter, what you don't realize is when you do something to somebody for free, even you get validation and confidence and conviction in your own coaching methodology. While you're coaching somebody, you will see loopholes in your own coaching process. You will improvise on your coaching, on your product delivery, while you're actually improving your business at somebody else's cost. Yes, got it. Thanks a lot Manish ji for answering this, क्योंकि मैं उसको वो देख रहा था, मतलब ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो हम लोग लाए उस बिजनेस कोच का, इसमें से बहुत सारा वैल्यू एडिशन पॉइंट्स निकला है, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है, सिर्फ उसके साथ नहीं, वो तो बस एग्जांपल थे। ये सेम चीज बहुत लोगों के साथ होता है, ये कंफ्यूजन आता है कि फ्री में देना चाहिए कि नहीं चाहिए। लॉट्स ऑफ पीपल थिंक फिर क्यों फ्री में दे, यूट्यूब में क्यों फ्री में सिखाए एक्सेट्रा। तो आंसर सबको मिल चुका होगा अभी तक कि क्यों करना चाहिए। और मेरे लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्निंग मिलता है। मेरे लिए लर्निंग ये है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी से। मैं ऑफ कोर्स नहीं कर रहा था उनसे उनसे तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था, अच्छे से ही बात कर रहा था, बट ठीक है। मेरे लिए लर्निंग वो था कि उनका साइकोलॉजी समझना कि ही इज नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। अगर ट्रस्ट नहीं करे तो ज्यादा पीछे मत पड़ो, उसका छोड़ दो, आगे बढ़ो, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ लीड। Of course. मैं हाँ, क्योंकि मेरी पर्सनल 1-to-1 बात हो रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उसको समझाता हूँ, बट हो सकता है कि वो नहीं समझेगा, वो उस जर्नी पे नहीं है। तभी तो होता है ना कि अगर 100 लोग वेबिनार पे आ रहे हैं तो 10-20% पीपल विल बाय, बाकी लोग आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे, या आपकी जर्नी से रेजोनेट नहीं कर रहे, आपके मेथड से रेजोनेट नहीं कर रहे। some people might not want to do webinars, some people might not want to run ads, they want to do organic। उनको YouTube में वो ऑर्गेनिक कंटेंट बना के 1-2 साल बाद धीरे धीरे फेमस होना है। सबका अपना अपना चॉइस होता है ना, थोड़ी वो गलत है या सही है, सबका अपना अपना चॉइस है। गॉट इट, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, यस। सो डिफरेंस बिटवीन रनिंग, हाँ ये तो मेरी फेवरेट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन अ कोच बीइंग अ कोच एंड हिम रनिंग अ कोचिंग बिजनेस। मतलब कोचिंग को सिर्फ कोचिंग या अपने आप को कोच नहीं बनाना है, मतलब दो चीज हो गया है यहाँ पे, मतलब ये काफी क्लोजली है, तो यहाँ पे कभी कभी मैं अटक जाता हूँ इसको डिफरेंशिएट करने में। एक गुरु बनना और एक कोचिंग बिजनेस चलाना, ये दो अलग अलग चीज है। यस, तो ये दोनों अलग चीज है। तो होता क्या है इसमें, ठीक है, थैंक यू। हाँ, होता क्या है इसमें कि लोग, जैसा मैं बात कर रहा था कि मैं उनके इवेंट पे गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे भी मेरी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन बनी थी कि बहुत लोगों से बात हुआ, तो वहां पे मुझे समझ में आया कि लोग इसको कोचिंग बिजनेस की तरह नहीं देखते। ये बहुत बड़ा रीजन होता है फेलियर का। और यही सारा चीज जो सक्सेसफुल स्पीकर थे वहां पे, सारा उनमें कॉमन था कि वो लोग इसको कोचिंग की तरह नहीं देखते, इसको कोचिंग बिजनेस की तरह देखते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया कि ये वाला मनीष जी, आप थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर पाइएगा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ उसको एक्चुअल में कि कैसे उसको एलेबरेट किया जाए। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको इसका नॉलेज पूरा है, आप सिर्फ कहीं अटक रहे हो। हाँ, मतलब मैं कहीं ठीक है, लॉस्ट हो गया अभी, अचानक कोई से वो बात आया नहीं। था मनचाओ सूप। अच्छा, पिज्जा नहीं हाँ, आ रहा, मंचाओ सूप आ रहा है। नहीं एक्चुअली मनचाओ सूप बनाकर लेकर आए थे, तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो कोई गया। बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक कोच का काम क्या क्या होता है? अगर हम बिजनेस को हटा देते हाँ, शुरू नहीं, से, सिर्फ एक कोच का काम। आप नॉर्मल को सपोज आप सपोज पढ़ाना, मेरा शुरू मेरा से एक बोलते हैं। हाँ, आप जी सपोज बोलिए। मेरा एक कोचिंग बिजनेस है। मैं एक हम्म। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मैं एक पूरा कोचिंग बिजनेस चला रहा हूँ, हम्म। कोचेस के लिए। तो उसमें एक कोच है जो डिलीवर कर रहा है हाउ टू डिजाइन गुड कोर्सेज, दूसरा है हाउ टू क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग। आप मेरे कोचिंग बिजनेस में आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोच हो। हम्म। ठीक है, आपकी क्या क्या काम होगा आपका? हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोच है, तो हम हाँ। आपको एड्स, मतलब आपका मेन काम हो गया कि आपका एड्स अच्छा चलाना, आपके लिए हम्म। अच्छा क्वालिटी का लीड्स आए वो इंश्योर करना, हम्म। वो लीड्स आपके वेबिनार तक आए वो इंश्योर करना। हम्म। और वेबिनार में आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि इसका स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, मैं गाइड करूंगा, वो मेरा काम नहीं है उसका, करेक्ट। बट ठीक है मैं गाइड कर देता हूँ कि ऐसा करोगे तो आप अच्छे से सेल हो पाएगा। तो वैसे लगभग ही ये हो गया। तो वैसे ही किसी भी कोच का काम क्या हुआ?
एक कस्टमर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना। एग्जैक्टली exactly. एक कोच का काम सिर्फ इतना होता है, अपने नीश में अपने टारगेट ऑडियंस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको नॉलेज देना, एटीट्यूड देना, स्किल्स देना, हेल्प करना। यस दूसरा एग्जांपल हम लोग इसको और बना सकते हैं रिलेटेबल, क्योंकि लोग बहुत बार मेरे एग्जांपल से बोर हो जाते होंगे ऑडियंस, क्योंकि अभी पिज्जा का बात हुआ तो हम थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। मतलब एक पिज्जा कोच हो गया जो बता रहा है कि हाँ पिज्जा कैसे बनाते हैं, टेस्टी पिज्जा कैसे बनाते हैं, आप घर में अपने लिए कैसे पिज्जा बना सकते हो। तो कोच का हाँ काम वो हो गया। हाँ। तो वो ठीक है, कोच क्या करेगा बताओ जरा। वो कोच आपको बताएगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करेगा लेकिन अच्छा पिज्जा बनवाएगा, पिज्जा बनवाने पे ही फोकस करेगा, उसका काम वही उस है। कोच का काम ये हुआ कि आप एक अच्छा पिज्जा कैसे बना सकते हो। हाँ। ठीक है, ये आपको सिखाना। हम्म। तो ये हो गया एक कोच का काम। हाँ। अब उस काम को साइड हटा दो। हम्म। उस पिज्जा कोच को उसके अलावा और क्या क्या काम होता है वो सारे जरा बताओ मेरे को, उसके सीख कोचिंग वो, बिजनेस वो को चलाने के लिए। हाँ वो पिज्जा बनाना सिखा रहा है, हाँ तो किसको सिखाएगा? हाँ। आदमी चाहिए, उसको लीड्स चाहिए, लोग चाहिए। तो लोग चाहिए तो उसके लिए उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा पहले, करेक्ट। तभी तो लोग आएंगे। अब सिखाने से पहले ही उसको सेल भी करना पड़ेगा, कस्टमर बनाएगा उसको वेबिनार पे, तब तो यहाँ पे आ रहा है। और क्योंकि वो एड्स वगैरह चला रहा है, तो उसको अपने बिजनेस का भी वो देखना है कि फिनेंस वगैरह मैनेज करना है कि कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। और अगर थोड़ा स्केल कर गया है तो ऑफ कोर्स कंपनी का रिटर्न वगैरह भी फाइलिंग वगैरह करना पड़ेगा, टैक्सेस भरना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर हो सकता है उसको टीम भी बिल्ड करना पड़े कि अकेले वो इतना चीज कैसे ही कर लेगा। एक दो आदमी हायर करेगा जो, या फिर एजेंसी हायर करेगा जो उसका ये एड वगैरह चला के दे। फिर ये टेक्निकल काम हो गया कि अगर वो जूम से सिखा रहा है फॉर एग्जांपल, तो जूम को कौन मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। मतलब जूम पे वो कोच सिखा रहा है बट उसके साथ साथ कोई कमेंट्स है तो उसका कोई रिप्लाई कर रहा है, जूम का लिंक कोई भेज रहा है। बड़े लेवल पे करना, कुछ खराबी हो गया टेक्निकल तो उसको मेंटेन करना। फिर ब्रांडिंग का बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, कंटेंट बनाना यूट्यूब में, वो भी एक पार्ट है जो इस पार्ट में नहीं आता है बट आ रहा है, वो उसको करना है अगर ऑफ सक्सेसफुली कोर्स, उसको करना है तभी। 100% करना है। हाँ। सोशल मीडिया चलाना है। तो इस तरह का चार पांच चीज हम लोग ऊपर ऊपर बताए, बट ऐसा ऐसा तो उसको हजारों हजार चीज करना पड़ता है। तो अभी आप मुझे बताइए इसमें फर्क क्या हुआ, बीइंग अ कोच एंड रनिंग अ कोचिंग बिजनेस। हाँ तो फर्क तो सबको समझ में आ ही गया होगा, मुझे भी क्लैरिटी हो गया वापस से। मतलब वही हो गया बेसिकली कि बीइंग अ कोच एक काम है, कोचिंग बिजनेस चलाना हजार काम है। तो करेक्ट। आप अगर पैसा कमाना चाह रहे हो सीरियसली, तो आप एक काम करके उन लोग से कम्पीट नहीं कर सकते जो हजार काम कर रहे हैं। करेक्ट। यानी कोचिंग और कोचिंग बिजनेस को और सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक हो गया आप एक कोचिंग दे रहे हो लोगों को, और एक हो गया दूसरा बिजनेस चला रहे हो। करेक्ट। तो आपको बिजनेस चलाना है तो उसको बिजनेस के नजरिए से देखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोच है, कोई फ्री में किसी को पकड़ लिया इधर उधर से और उसको सिखा रहा है कि मैं 5,000 रुपीज में आपको पिज्जा बनाना सिखा दूंगा, आप ये कर लेते हो। तो कितने ही लोगों को पकड़ पाएगा, एक दो लोगों को पकड़ पाएगा। व्हाट्सएप पे चला रहा है, इधर साइड से स्टोरी वगैरह चला रहा है, कुछ लोग और आ गए। बट इसको अगर उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, उसको कंटिन्यू बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, तो ये सारा चीज जो बोलते हैं 7 पार्ट्स ऑफ बिजनेस होता है, तो वो सारा चीज को पैरेलली चलते रहना चाहिए, भले धीरे धीरे चालू करो। कंटिन्यूअस उसका लीड्स आते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस सेल्स होते रहना चाहिए, लीड्स आते रहना चाहिए, सेल्स होते रहना चाहिए, डिलीवरी होते रहना चाहिए। और अभी अकेले अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है उसको 100% मार्जिन मिल रहा है बिना एड्स का। बट अगर प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाएगा, जो हम लोग डिस्कस किए थे, फिर मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है, टीम मेंबर का एक्सपेंस होता है, हजार तरह का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे भी लोग फेल हो जाते हैं बेसिकली, कि करेक्ट। वो सोचते कि नहीं। और इनफैक्ट ये मुझे एग्जैक्ट पॉइंट याद आ गया कि उनके इवेंट में क्या बोला जा रहा था, कि ये बोला जा रहा था कि इसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते। हाँ। ये तो एकदम अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है कि इसको पार्ट टाइम मत करो, कोचिंग को बिजनेस की तरह करो, बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं कर सकते। मतलब कोचिंग पार्ट टाइम कोचिंग बिजनेस और फुल टाइम कोचिंग बिजनेस, इसको चार पांच लेवल में लगा सकते हैं हम लोग। तो कोचिंग को कोचिंग बिजनेस की तरह करो। जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम से चालू कर लो थोड़ा बहुत ठीक है, बट धीरे धीरे इसको फटाक से स्केल कर दो जितना जल्दी हो जाए।
करेक्ट। नहीं स्केल करोगे तो फेल होगा, ये वन ऑफ द रीजंस होता है, मतलब कॉमन रीजंस होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वही जो आप बता रहे थे ना कि मैं 4 साल 5 साल से यही कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो हर पॉइंट के लिए हर जगह प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक क्लाइंट आए थे, वो सिखाते थे हाउ टू बिकम हैप्पी, हैप्पीनेस कोच थे वो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हैप्पीनेस कोच थे क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, हमको पैसा दे रहे थे तो हम खुश है, तो हम भी हैप्पी थे। आप भी तो आप भी थे मैं वही बोल रहा था। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 1 महीना चला है, फर्स्ट मंथ उनका फनल वगैरह सेटअप हो गया, वीएसएल वगैरह, वीएसएल फनल चला रहे थे, काइंड ऑफ ऑटोमेटेड वेबिनार, सब कुछ चला मस्त, उनका लीड्स वगैरह आना चालू हो गया। 1 मंथ कंप्लीट होने वाला था। अब वो मेरे पास आए, बोले कि पंकज, मेरा 1 मंथ तो कंप्लीट हो गया, आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, मुझे कॉन्फिडेंस भी आगे जाके होगा ये चीज। हमको पता नहीं हम क्यों ऑफेंड करते रहते हैं, एक दिन पकड़ के सब पीटेगा हमको। बट मैं ठीक एक्चुअली है। कुछ बोलने वाला था आपके ये पॉइंट खत्म होने के बाद, बोलिए आप। ठीक है। इनफैक्ट मैं तो नाम भी ले देता हूँ जो आप नहीं नहीं अवॉइड नहीं करते नहीं, हैं। नाम मत लेना, मैं वही बोलने वाला था। हाँ चलो अभी मैंने मैं। हाँ मैं हाँ नाम जनरली नहीं लेता हूँ, अवॉइड करता हूँ, उस कोचेस का नाम नहीं लेता हूँ। मैं नाम उस टाइप से ले लेता हूँ, गोपाल का, क्योंकि वो हाँ, मेरे जो मेंटर्स हैं। हमारे मेंटोर है, जिनसे हम सीखे, जिनके बारे में हाँ। अच्छी बातें बोल रहे हैं, उनका तो हम हक से नाम लेंगे। यस। जो तो हमको मैं इनके सिखा कर गए हैं, जो हमको कुछ अलग चीजें सिखा कर गए जो हमको नहीं करनी चाहिए, हाँ, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन बट हाँ। उन उन सारे उदाहरणीय कोचेस को नमस्कार, लेकिन उनका हाँ। नाम नहीं लेंगे। हाँ, हम आपसे ताकि सीखें कि हमें उनको क्या पता नहीं है। हाँ, उनको पता है वो ऑफेंड भी होंगे, बट वो कुछ कर नहीं सकते, ब्लेम नहीं करना। कर सकते। बट ठीक हमारा है। एक्सपीरियंस है। हाँ। हाँ, तो उनसे मैं ये सीखा कि हाँ, उनका वो हो गया, 1 महीना तक सब कुछ सेटअप हो गया, मस्त चला। उनका लगभग वो 1-to-1 फनल था, कि एक हम्म। एक, एक जन से पर्सनली बात करके उनको सेल करना था, हाई टिकट कोचिंग था, 1 लाख रुपीज का। हम्म। तो हुआ क्या कि 1 महीना कंप्लीट हो गया, बोले कि सब कुछ अच्छा लग रहा है आपका, हमको काम भी करना है, बट अभी कुछ दिक्कत चल रहा है मेरे जॉब में, तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ पे नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको हम्म। अब तभी पे करूंगा जब मेरा 1-2 सेल्स होना चालू हो जाए। हम्म। तो वो था, तो उसमें मुझे दो प्रॉब्लम क्या लग रहा था ना, दो प्रॉब्लम लगा था। एक तो वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, करेक्ट। वो मुझे पता ही नहीं था कि पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो मुझे 1 महीना बाद पता चला। हम्म। वो मेरी फॉल्ट थी, मतलब फॉल्ट क्या थी, मतलब मैं लेता ही नहीं अगर मुझे पता रहता तो, क्योंकि मैं हम्म। फुल टाइम कोचेस को अपने एजेंसी पे लेता हूँ। करेक्ट। कोचिंग सिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ बाकी लोगों को, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, बट एजेंसी में जब मैं मेहनत करके ला रहा हूँ रिजल्ट, तो मैं नहीं लेता हूँ किसी को भी, करेक्ट। क्योंकि लिमिटेड लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। तो मुझे वो पता नहीं था। फिर जब पता चला तो एक तो मुझे वो लगा कि वो मिस्टेक था वहां पे, जो मैं सीखा था उनसे, कि नहीं पार्ट टाइम लोग वाले लोगों को नहीं लेना है, इसलिए भी वो फेल हो रहे। क्यों फेल हो रहे? क्योंकि मैं बहुत सारा चीज उनको बोलता था कि आप ये कर लो, आप ऐसे इंप्रूव कर लो, आप इतना कुछ वो कर लो, आप ये कर लो, ऐड बना लो, कॉल कर लो, एक्स्ट्रा कर लो, फॉलोअप कर लो, स्क्रिप्ट चेंज कर लो, ये कर लो। नहीं कर पाते थे, टाइम कहाँ जाता था मुझे पता ही नहीं। हम बोल रहे कि आपके पास और भी कुछ फनल चला रहे क्या? बोले नहीं, सिंगल फनल है। तो इस तरह से सब कुछ करते गए, बट वो आंसर मेरे को लास्ट में 1 महीना बाद मिला था, कि वो जॉब कर रहे इसलिए उनके पास टाइम नहीं है ये सब इम्प्लीमेंट करने का। बट मैं सोचता था कि यार कर क्यों नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट, दिक्कत कहाँ हो रहा है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है, कहाँ हो रहा नहीं पता नहीं, बट बाद में पता चले इसलिए वो फेल हुए। और फिर दूसरा था, वो अडेप्टेबल भी नहीं थे वहां पे, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बोल रहे थे नहीं, ये ऊपर वाला पॉइंट आ गया जो आप बोल रहे थे, रिजिड वाला, कि नहीं मैं तो नहीं बिक रहा है, तो हम बोले नहीं बिक रहा है तो एक बार प्राइस कम करके एक बार ट्राई करके देखिए। तो वो बोले कि डेफिनेटली प्राइस के वजह से नहीं बिकता है, आई एग्री टू यू। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को डबल कर देता हूँ, क्या पता 1 लाख में लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, 2 लाख में हो सकता है बिकेगा। हम बोले ठीक है। फिर हम बोले फोन का बैटरी खत्म हो गया, बाद में बात करते हैं। मतलब वो बोले प्राइस का फॉल्ट होता है, तो हम खुश हो गए, बोले सही बात है, जेन्युइन बात है। बट वो बोलते हैं, मतलब एक मनीष जी, मुझे लगता है ना कि एक एपिसोड वो कर लेंगे, कॉमेडी एपिसोड पूरा कोचिंग के बिजनेस पे, कॉमेडी स्टोरीज ऑफ माय क्लाइंट। इनफैक्ट जब मैं सोशल मीडिया कंटेंट बनाना चाहता था, तो मेरे एक मेंटर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो भी क्लाइंट के साथ डे टू डे डील कर रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ आता है, उसके बारे में आप लिखना चालू कर दो, फेसबुक पोस्ट बना दो, लिंक्डइन पोस्ट बना दो, उसको ह्यूमरस वे में पोर्ट्रे करके दिखाता हूँ। बोले हर चीज मेरा ह्यूमरस ही होता है, मतलब क्यों करते लोगों को समझ में नहीं आता ये सब बात। बट हाँ, ये हो रहा था कि अगर पार्ट टाइम कोचिंग लोगे तो सक्सेसफुल कैसे ही होगे उसको। नहीं, पार्ट टाइम कोचेस हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बट उनके देखिए क्या है ना, देर इज नो वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। यस। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन से पार्ट टाइम कोचेस हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास एक टीम है, जो हम्म। अपना जितना भी पैसा कमाते हैं ना, उसका
इजीली अबाउट 50 to 60% रेवेन्यू है ना उनका टीम लेके जाता है, जहाँ पे उनका कोई एड्स दूसरा चला रहा है, फनल कोई और मेंटेन कर रहा है, वो लिटरली फिर सिर्फ एक कैमरा के सामने आते हैं और बात करते हैं और अपना कोचिंग डिलीवर करते हैं। बट क्या वो जिगरा आपके पास है? क्या आपके पास इतना इनकम है कि आप स्टार्टिंग के 6 महीने जब तक आपको रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपनी टीम को हैंडल कर सको? क्या आपके पास वैसा थॉट प्रोसेस है? मैं खुद आगे जाके कोचिंग बिजनेस में सिर्फ कोचिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस कोई और मैनेज करेगा। लेकिन आज जब मैं, देखिए मेरा काम करने का तरीका अलग है। आई वॉन्ट टू सेट अप माई एंटायर बिजनेस बाय माई सेल्फ, and I then want to put a team where I will be delegating my way of working. But there is a vision there. You can't just expect everything to fall in your platter right on day one and expect everything to work on autopilot. That is never going to happen. यस, ट्रू ट्रू। हाँ, ये पॉइंट मेरा मिस हो रहा था वहां पे, कि कभी कभी आजकल पॉइंट मिस होने लग जाता है कि पार्ट टाइम करो बट टाइम दो इसको। ऑफ कोर्स टाइम दो, और आगे जाके देखिए तकलीफ क्या है ना पंकज, इसमें मैं सारे कोचेस को भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि हमको ही पता है ऐसे कितने कोचेस हैं जो बड़ी बड़ी एड चलाते हैं जिनका बजट हजारों में है दिन का, और वो बोल देते हैं यू कैन डू दिस पार्ट टाइम, यू कैन डू दिस पार्ट टाइम, यू कैन डू दिस पार्ट टाइम। फिर उसमें तकलीफ हो जाती है, लोग बहक जाते हैं। हाँ, पार्ट टाइम करके और फटाफट रिजल्ट आना, क्योंकि वो जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था मेरा, मैं स्टार्टिंग ही उसी से किया था कि 1 महीना बाद वो आकर बोल रहे हैं। तो उसमें वही था कि वो 1 महीना के बाद ही वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब मैं फिर वही सोचा, क्योंकि उसमें मैं उनसे 50,000 रुपीज के आसपास चार्ज किया था 1 मंथ ऑफ कोचिंग के लिए। कोचिंग था इनफैक्ट, डन फॉर यू भी आई थिंक नहीं था, 1-to-1 कोचिंग या कुछ था, याद नहीं है। तो बट उसमें क्या हो रहा था कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपको पता ही था कि इसमें टाइम लगता है, उनको पता था टाइम लगता है, सब कुछ सेट था उनके दिमाग में, बट फिर हम बोले कि पता ही था आपको टाइम लगता है, तो आपको कम से कम 3-4 महीना का पैसा तो लेके रखना चाहिए था ना। करेक्ट। तो ये भी इशू होता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते लोग। पार्ट टाइम करो तो फिर लॉन्ग टर्म करो ना, कम से कम कुछ दिन तक, 6 महीना 1 साल चलाओ, जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हो। अगेन उनको भी है ना रिस्क लेना नहीं आता है। रिस्क लेना क्यों नहीं आता? क्योंकि मनी माइंडसेट जगह पे नहीं है, तो उनको भी है ना एक मनी माइंडसेट कोच की जरूरत है। बिल्कुल। तो वही हो रहा था कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे, मतलब क्लियर ही वो बोले ना कि अब पहला सेल आएगा तब हम पैसा देंगे। तो बोले आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कहाँ पे कॉन्फिडेंस है? बोले प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। तो बोले वापस रिपीट करिए। तो फिर यही सब चलता था। तो ये हो रहा है। और पार्ट टाइम, बोला मैं अग्री कर रहा हूँ कि हाँ, वो ऑडियंस को भी क्लैरिटी देना जरूरी है कि पार्ट टाइम तो बिल्कुल होता है। जैसे कि कोचिंग का एक और रीजन ये भी होता है लोगों का कि वो अपना बिजनेस चला रहा है। मान लेते हैं किसी का ज्वेलरी बिजनेस है फॉर एग्जांपल, मैं उनके साथ डील नहीं कर रहा हूँ, बट अगर वो ज्वेलरी बिजनेस चला रहा मैं है, जानता हूँ, मैं खुद ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनका एक अलग बिजनेस है, उसको और वो प्रमोट कर रहा है, मंडे टू अथॉरिटी बना फ्राइडे रहा है। बिजनेस में चलाते हैं, वो ही चीज सैटरडे संडे को एज अ कोच अपनी कम्युनिटी को सिखाते हैं। हाँ, वो उस चीज को सिखा रहे हैं। करेक्ट। तो वो पार्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया। मतलब मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा था। हाँ नहीं, मैं बट इन जो जनरल, लाइटली ले रहे जो इस चीज को। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कोचिंग होने वाला है, अगर आप सिर्फ ये करने वाले हो, और अगर फिर भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप हम्म। सिर्फ कैमरा के सामने आओगे और सिर्फ कोचिंग करोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपको सोशल यस। मीडिया कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, आपको फिनेंसेस और अकाउंटिंग भी मैनेज करनी पड़ेगी, आपको टैक्सेस भी मैनेज करने पड़ेंगे, आपको आगे जाके टीम भी बनानी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का भी जरूरी है, इंफॉर्मेशन होना, आपको फनल यस। कैसे बनाना है, फनल कैसे डिजाइन करना है, आपके लीड्स कैसे मैनेज करने हैं, आपको आपका एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। नन ऑफ दिस इज ऑप्शनल, ऑल ऑफ दिस इज कंपलसरी। तो कोच यस। बनना एक बात है, कोचिंग बिजनेस चलाना एक अलग स्किल सेट है। यस। अभी ये एपिसोड चालू करने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि 1 घंटा में खत्म कर देंगे, मैं बोल रहा मैं था। आपको बोलने ना, जरा इसको पॉज करोगे, मेरे को एक बात करनी है आपसे, पॉज कीजिए। करते। ओके, सो इंटरेस्टिंग न्यूज, आप लोगों के लिए कुछ हुआ नहीं है। आप तो मतलब 1 सेकंड का आपको पॉज आया और आपस में ओके इंटरेस्टिंग पे आ गया। बट आई टेल यू हुआ क्या है। Pankaj and me took a pause. We took a break because when we started this episode, we realized that we have 16 points. And we also realized that we are going deep dive in every point, which we always do. What we didn't realize is how much time we will take to cover every point. We've been talking, we are assuming you're talking for about an hour and a half or so, and we've covered only 6 points. So we have two options. One is to cover the rest of the points, 10 points in the next half an hour, or we go deep dive in all the 16 points and create a 4-hour long episode.
which nobody will see. Let's be honest. You like us, you don't love us so much that you'll watch a 4 hour long episode. So we decided the most practical thing to do. We are going to cover the next 2 points, and we are going to give this episode a break. And we're going to talk about the rest 8 more points of why coaches are failing in this industry in the next episode, which is going to be which will go live again the next week whenever you are seeing it. So basically, this is now going to be a part 1 and a part 2 episode. And this is probably going to be one of the first times in the history where a part 1 and a part 2 episode is being declared midway of the first episode. वो भी ब्रेक लेके I'll give you a very good example. ये actually real life में होता है. KGF पता है मूवी आपको? हाँ मैं देखा हूँ. हाँ, KGF as a movie was supposed to be a one movie. Like part 1, part 2 नहीं होना था. It was supposed to be a story. But when they started shooting, they realized कि इसको एक मूवी में अगर बताने की पूरी कोशिश की पूरी स्टोरी को तो उसका जस्टिस नहीं होगा. Because of which it became KGF part 1 and part 2. तो जो अभी हमारे साथ हो रहा है ना, ये रियल लाइफ में होता है. तब फिर ठीक है. क्योंकि वो करोड़ों की मूवी है तो उसको ऐसे पता नहीं चलता है. हाँ, ये रियल है. ये इससे आपको पता चल रहा है कि हम कितना इसके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, कितना हम इसको बना रहे हैं दिल से. Yes. So continuing, until now, let me just give you a very quick recap. Why coaches fail? Because they focus on learning and not on execution of the business, or not on actually launching their business. They're bad at selling, underconfident at selling. They don't focus on social media content. There is lack of clarity of niche, target market, end result to the customer. They don't have enough experience in their expertise, in the area of, in the domain of expertise, and they just start trying to become a coach and they'll fail miserably. They'll just nosedive. So please, if you're one of those coaches, please don't do a business like this. We've given you some ways of working it out. And they don't understand the difference between the whole activity of coaching and how to manage a coaching business. We've already covered these points. We are going to cover 2 more points in this particular episode, and we are going to give you 8 more reasons. So we hope that you take all of these points in the right spirit, tweak how many ever points you need to tweak in your business in 1 week, and because the next week we are going to give you 8 more points. So with that, Pankaj, let's go to the next point. One of your favorite points, जहाँ पे आप अगर चाहो तो मुझे भी थोड़ी बहुत छड़ी मार सकते हो, which is lack of action. हाँ, one of the reasons why coaches are failing is because there is not enough action and there is lack of action. So Pankaj, please tell us more about this. मतलब मैं अभी तक अपने क्लाइंट्स का एग्जांपल लेता था, यहाँ पे अच्छा है कि मैं आपका भी एग्जांपल ले सकता हूँ. अब बेसिकली जो अभी मनीष जी खुलासा किए थे, सनसनी खुलासा की, वो मेरे को मेंटर कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हम लोग कुछ 2-3 महीना से चालू किए थे कि चलो हम लोग बेसिकली मेंटरिंग का मेन पर्पस है कि अकाउंटेबिलिटी भी, कि मैं उनको ऐड सिखा रहा हूँ, वो मेरे को थोड़ा सा अपना गाइड कर रहे हैं कि कभी मैं निश में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये निशा हो वो निशा हो. मुझे भी पता है कि नहीं ऐसा करना है, बट एक वो मिल जाता है मेंटर कि नहीं, वो बताते कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, या फिर तुम्हारा थॉट तो ये तो था ही नहीं, थोड़ा ऐसे करना चाहिए. तो हम लोग एक दूसरे को सिंक में लाते रहते हैं. तो इनका पर्पस था कि चलो वेबिनार लॉन्च करना है इनको वापस से. पहले भी ये करते थे बट इनको वापस से लॉन्च करना था. तो ये होते होते पता ही नहीं चला मुझे कि 2 महीना कब पार हो गया. मनीष जी लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे से मत पूछना, मैं बताऊंगा तुमको एक दिन. मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा. मतलब उस समय मेरा मेंटरशिप चालू भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो समय बस उस समय हो रहा था कि जब वो एड लॉन्च कर देंगे, जब करने के लिए रेडी होंगे, इनफैक्ट कर देंगे नहीं, जब करने के लिए रेडी होंगे तब से मेरी मेंटरशिप चालू होगी, तब से मैं उनको गाइड करूंगा कि कैसा ऐड बनाना है, कैसा ये करना है. बट मैं वेट कर रहा था कि मनीष जी आप तो मुझे हेल्प कर रहे हैं, बट मेरे को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपका ऐड लॉन्च करे, आपका वेबिनार पे हेल्प करे, ये करे वो करे. तो ये 1 महीना 2 महीना पार हो गया. 2 महीना मतलब लिटरली 2 महीना पार हो गया. और पूछते रह गए मनीष जी क्यों है, कहाँ दिक्कत है आपका? तो अब बोलते रहते हो कि आपका कोर्स भी रिकॉर्डेड है. कोर्स भी रिकॉर्डेड था इनका पहला वर्जन. बोले सब कुछ अच्छा है तो फिर दिक्कत कहाँ है? वेबिनार स्लाइड में दिक्कत नहीं. नहीं स्लाइड तो मेरा पहले ही बना हुआ, हम 2-3 साल पहले भी किए थे. ये भी है, ऐड चलाने भी इनको आता है, पहले ऐड भी चलाए हुए. नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो वहां बैठे हुए. बोले हम तो आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए कि ऐड कैसे चलाना है, दिक्कत कहाँ है. नहीं पता चला कि कहाँ दिक्कत है. इनफैक्ट आज भी मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ था.
टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्ट क्लियर आंसर तो नहीं है मनीष जी मेरे पास आज भी। तो था कहाँ पे वो, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? जो भी हम लोग पॉइंट कवर कर रहे, लैक ऑफ एक्शन, क्या आपका पर्सनल भड़ास रीजन क्या निकाली है, था? क्या भड़ास निकाली है पंकज ने आज। अब पूरे 2 महीने तक एकदम बैठ के कि नहीं कर रहे, पूछो मत मेरे से, पूछो मत, मैं बताऊंगा बताऊंगा। हाँ, सो बेसिकली सी, आप लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत बड़े कोचेस हैं, मतलब ऑब्वियसली वी आर fairly decent in our business where we are fairly comfortable, because of which we have so much knowledge that we share with you. यस। But we are also human. We also go through our challenges. We also go through our bad days. We also go through our bad phases. So that's perfectly okay. The reason to be vulnerable over here is to not gain sympathy. It's actually to show you that, you know what, everybody goes through this. So you're not alone, which is exactly why we are creating this community, which is exactly why we are giving opportunity to our co-podcast hosts to take our case live in an episode. So yeah, it all happens. The idea is, yes, you will get into a zone where there will be a lack of action. Now that can happen for multiple reasons: health reasons, personal reasons, relationship reasons, family reasons, or whatever reasons. Or just you don't have the motivation, or you're just going through a zone of underconfidence. But understand this: lack of action is one thing. Lack of action to the extent that it ends up ruining your coaching business is another thing. Please take this seriously and just do whatever you can to get out of this lack of action zone. What helped me is finding an accountability partner, asking help from Pankaj. You won't believe, in a very strong manner, this podcast, Coach I Need Help, has been a source of energy, because when we got into the whole concept of shooting these episodes on a weekly basis, even that helped me get into some sort of a discipline. And just today, before this episode, I was talking to Pankaj about how do we take this discipline to the next level, and I'm going to implement it. And when we get success out of it, we'll share it with you also. But the idea is, lack of action is a very real thing. It's a very human thing. So if you are, as a coach, stuck in the whole concept of lack of action, go down to the comments below. Tell us, where are you getting stuck? Maybe we can help you. Maybe you can find more accountability partners in the comment section. Do whatever it takes to get out of lack of action. One more reason where I have seen coaches get into the lack of action zone is one of the points that we spoke about. One of the points that we spoke about earlier: lack of clarity. I have seen multiple coaches get into the whole concept of lack of action because they are not clear about their niche, about their target market. They are not confident that they are going to be able to give a breakthrough to their clients, because of which their underconfidence gets projected as lack of action. Yes. All of this happens. It's a very real thing, especially in our industry. So don't take it personally. Don't look at yourself as a lost cause. Just deal with it, work on it, and you will definitely overcome it. It's just a matter of time. So yeah, that is one thing which is absolutely real, which I wanted to share with you: lack of action. And as you've clearly seen, my co-podcast host, my co-podcast owner, my enemy in crime, you've seen him, how he just lashed out on me. It happens. Lack of action also happens. कैसे खुश यस। हो रहे हो आप? कैसे खुश हो रहे हो? कैसे हंस रहे हो मेरी ऐसे ऐसे मेरे को स्पॉट में डाल के? यस। सो ये आप सही बोल रहे कि मतलब ये सब वही है, साबित हम लोग वही कर रहे थे कि प्रैक्टिकल चीजें होता है सबके साथ। अब मैं भी बोलते रहता हूँ कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो बहुत बार आप लोग शायद अगर जो रेगुलरली देख रहे होंगे ये सब एपिसोड्स को, मैंने बहुत बार बोला कि हम लोग 3 साल पहले भी पंकज कोचिंग करते था, फिर बीच में कोचिंग बंद करके फिर एजेंसी चालू कर दिया हम लोग, फिर एजेंसी को वापस से चला रहे थोड़ा टाइम, अब वापस हम कोचिंग में ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारा पॉइंट जो ऊपर हम डिस्कस कर लिए वो सब ऑलरेडी मेरे पास भी हुआ है, टोटल हर कुछ के थ्रू हम भी गए। निश क्लैरिटी में भी मेरा कंफ्यूजन होता था, यहाँ पे भी होता था, वहां पे भी होता था। एजेंसी वर्सेस कोचिंग में भी दिक्कत रहा है कि एजेंसी करूँ कोचिंग करूँ। लैक ऑफ एक्शन भी मेरा ऑफ कोर्स एक पॉइंट रहा है कि चालू तो मैं भी कर सकता था बहुत पहले। इनफैक्ट अभी वापस से मैं बहुत दिन से सोच रहा चालू करूं। एक कम्युनिटी हम लोग ज्वाइन कर रखे हैं जो हम लोग बात करते रहते हैं हमेशा, तो वहां पे भी हम ज्वाइन किए। फिर अभी वहां ज्वाइन करने के 6-7 महीना बाद हम फाइनली अपना एड लॉन्च किए। तो ये बहुत रियल चीजें होता है, बट उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। शायद मैं राइट पर्सन हूँ भी नहीं उसके बारे में बात करने का कि लैक ऑफ एक्शन से कैसे निकले, बट निकल जाना चाहिए जितना जल्दी आप जैसे भी कर लो अपने उसके लिए। मे बी कोई एक्शन कोच फाइंड करो, कुछ और फाइंड करो, जो भी करो,
लेकिन आप जाओ एक्शन मोड में, जितना जल्दी निकल जाओगे उतना अच्छा है। Correct. And अब it is a real problem. It is a very, very, very real problem. इतना ज्यादा vulnerability अगर आपको पूरे इंटरनेट पे अगर कहीं पे भी दिख जाए तो हमें दिखाई है, क्योंकि मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं दिखा था जो ऐसे ओपनली बोल दे हाँ भाई हम लोग भी लैक ऑफ एक्शन के शिकार रहे। हाँ, मुझे तो आप बोल रहे थे ना हंसी क्यों आ रहा है, मुझे आप पे हंसी, आपके सिचुएशन पे जो हम आपको बोल रहे थे उसमें नहीं हंसी आ रहा था, मुझे इस पे हंसी आ रहा था कि हम लोग अपना डिस्क्लोज किए जा रहे कि नहीं हम लोग भी एक्शन नहीं लेते, क्या मजाक चल रहा है। But that is exactly what makes it real, ना? See, ऐसा नहीं, okay, I'll give you some perspective. It's not that when we say about lack of action, हम लोग बैठे हुए थे. I also know of my coach friends जो वाकई में काफी टाइम तक बैठे हुए थे, they could not function. And I also know their reasons. For that matter of fact, I'll be honest, for some time, even I was in that zone. Okay, maybe I'll talk about that in some other episode, maybe if not on this channel, maybe on Mr. Emojical, because yes, I have gone through an episode in my life which did lead me to a whole concept of underconfidence within the coaching industry itself. It's real. The idea is, ever since when I talk about lack of action, when I was in the lack of action zone, what one thing I never stopped was constant upgrading of my skill set, constant upgrading of my program database. I was always adding content to my videos or for my reels. I was always doing something. It was just not moving the needle in my business. Okay, so always be in the zone where either you're coaching or you're connected to the coaching community. I was always a part of masterminds. I was always connecting and networking with people. How else did I meet Pankaj? I met him at a mastermind. So everything, do stay in the energy is what I'm trying to tell you. So ट्रू that will also definitely help you. ट्रू। तो अगर मैं अपने केस में एनालाइज करूं, तो मैं बता रहा था कि मैं 3 साल पहले कोचिंग करता था, अभी वापस से लॉन्च नहीं कर पा रहा था, बहुत टाइम लग रहा था फॉर वेरियस रीजंस। Mm-hmm. बट हाँ, इस 3 साल में कोचिंग वापस से नहीं चालू कर रहे थे, बट एजेंसी तो चला रहे थे, वेयर आई वाज Correct. हेल्पिंग कोचेस। Correct. सो आई वाज देयर इन माय फील्ड, आई वाज एक्टिव देयर। बट दिक्कत खाली वो हो रहा था कि मैं जो लॉन्च करना चाह रहा था, वापस से रीलॉन्च कर रहा था, वो थोड़ा डिले हो रहा था। Correct. तो And हम लोग का वो बात है कि वो भी डिले नहीं करना है, जितना हाँ जल्दी हो वो जाए उतना तो अच्छा है। वो तो नहीं करना, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ फॉर वट एवर रीजन यू आर एब्सोल्युटली इन अ जोन जहां पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो भी उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो प्लीज. एंड इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे, इफ यू जस्ट वांट टू रीच आउट टू अस और इफ यू वांट टू take help of the community, please comment below. Whatever you feel comfortable with, we are always here for you. यस, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के केस में जो कॉमन रीजन होता है उनका लैक ऑफ एक्शन का, जो हम लोग बात करें कि वो लॉन्च क्यों नहीं करते, उनको फियर ऑफ फेलियर लगता है कि क्या काम नहीं किया तो। एक तो आप बहुत बताए लैक ऑफ क्लैरिटी, सेकंड हो गया फियर ऑफ फेलियर, नहीं काम किया तो क्या होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा एड में, या फिर मैं रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाया तो क्या होगा, फिर लोग बोलेंगे अरे ये तो फेक कोच बन गया, फेक गुरु बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर मेरे केस में लैक ऑफ एक्शन का रीजन भी मैं बता देता हूँ, वो होता है परफेक्शन मोड। ये बहुत बड़ा है. हाँ, वो अपने आप में एक पॉइंट है। तो मेरे केस में वही चलता है कि जो मैं जिससे भी बात करता हूँ, तो फिर वो वही, मतलब मेरी जैन से बात हो रही थी उस दिन, मैं उनसे भी पूछ रहा था कि आपको जयंत क्या लगता है कि मुझे इतना नॉलेज है, सब कुछ है, और आप बोलते हो कि हाँ वेबिनार में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत कम लोग हैं, मतलब जयंत तो लिटरली हमको ऐसा बोले थे कि इंडिया में बहुत कम लोगों को वो जानते हैं पर्सनली, क्योंकि वो पूरा यही इंडस्ट्री में ये मेरे जैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सेलिंग में उनको हेल्प कर रहे हैं। तो वो बताए कि बहुत कम लोग हैं जो वेबिनार में अच्छा रिजल्ट दिलवा पाते हैं लोगों को स्टार्टिंग में ही। मैं बोले अरे हाँ वो अच्छा ऐसा होता है क्या, तो वो काइंड ऑफ मेरे लिए वापस से एक वैलिडेशन हो गया कि आई एम डूइंग गुड। भले पीपल वेर गेटिंग रिजल्ट्स, दे वर मेकिंग 4x 5x ROS, बट स्टिल वैलिडेशन भी हमें चाहिए होता है वापस से हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो फिर वो मुझे, हम उनसे पूछे कि क्या रीजन था, क्या आपको क्या लगता है, तो वो मुझे बोले फॉर यू आई थिंक तुम ऐसा एक बान खोज रहे हो कि रामबान टाइप का चीज की वो खोज रहे हो कि अगर उस तरह से अगर कोर्स लॉन्च करते, उस तरह का लैंडिंग पेज बन जाता है, या उस तरह का निश है, उस तरह का ऑडियंस है, एकदम मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलाना चाह रहे हो। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के चलाना चाह रहे हो, इसलिए तुम लॉन्च नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक दिन परफेक्ट बनाते तो फिर उसको लॉन्च नहीं करते, तो फिर अगले दिन लगता है नहीं ये कर सकते थे, कहीं पे भी मतलब हल्का सा निश को ट्विक कर लिए, या फिर लैंडिंग पेज पे नहीं ये वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है, वो वीडियो लगा देना चाहिए। एड इमेज से क्यों लॉन्च करे, वीडियो से ही लॉन्च करना चाहिए। तो जो, क्योंकि मैं सुबह शाम सबको सिखाते रहता हूँ,
तो मुझे पता है कि हर स्टेप को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो मैं हर स्टेप में इम्प्रूव करते ही रहता हूँ, लॉन्च नहीं करता हूँ। हाँ। तो वो भी इश्यू हो जाता है, वो मेरे केस में था। ऑफ कोर्स तो वो होता ही है। वो और वो बहुत वैलिड रीजन है, मतलब हम्म क्योंकि मैं अपने से फोकस पे ध्यान दे रहा था कि ठीक है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, लैक ऑफ, मेरा कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी था विद रिगार्ड्स टू माय ग्रोथ विजन इन द इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। तो कुछ अलग ही था वो। ठीक है, जिस दिन मैं उसका भी एक्सपोजर करूंगा तो सब ढंग से बताऊंगा। बट हाँ। एट द सेम टाइम ये दोनों चीजें, क्योंकि दिस इज व्हाई आई लव डूइंग अ पॉडकास्ट विथ अ को होस्ट, बिकॉज मैं आपको सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव दे पाऊंगा। एंड हम्म स्पेशली विद अ को होस्ट लाइक पंकज, उनका सबसे बड़ा फायदा ये है, वो एक नहीं, वो 50 कोचेस के बराबर है, क्योंकि उन्होंने 50 कोचेस को लिटरली स्टेप बाय स्टेप हेल्प किया है। यस। उन्होंने 50 कोचेस को तो सक्सीड करवाया है। उन्होंने ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोचेस हु डोंट लिसन, कोचेस हु ड्रॉप ऑफ, कोचेस हु डोंट अंडरस्टैंड हिज कॉन्सेप्ट, उन्होंने 150 से 200 कोचेस को फेल होते हुए भी देखा होगा। हम्म तो उसके वजह से दिस मैन कम्स विद द नॉलेज ऑफ ओवर 200 कोचेस फॉर एन एग्जांपल। यस। तो इसके लिए ही कुड वेरी, अब ये तो हमने लिखा भी नहीं था, हमने सिर्फ लिखा था कि ठीक है लैक ऑफ एक्शन, ये तो ऑर्गेनिकली बात निकलती जाती है, इन्होंने मेरी खींच ली बहुत अच्छे से, जिसका मैं बाद में बदला लूंगा फिर कभी। बट हाँ। इसके लिए ही कुड कम अप विद लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ फियर ऑफ फेलियर, और ये सारी चीजें लैक ऑफ एक्शन के लिए, ये सारे कंपोनेंट्स इसके लिए उतना ऑर्गेनिकली लेकर आ पाए। तो थैंक यू सो मच यस। पंकज, मतलब ये अपने आप में सिर्फ ये एक पॉइंट बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाली डिस्कस नहीं कर रहे ना, मुझे लगता है कि उसको सॉल्यूशन भी देते जाना है हर चीज का। तो ये हो रहा है। और ऑफ कोर्स हजारों हजार और रीजन भी होते होंगे लैक ऑफ एक्शन का, बट ठीक है, जो जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, तो आई एम शेयरिंग दैट। अब हम्म। इसी से रिलेटेड हमारा 8th पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जो आज के लिए, हम्म। वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम्म। ये भी थोड़ा बहुत मेरे केस में, अगर मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये रिलेटेड था। क्योंकि हम्म। मैं परफेक्शन के मोड में जाना चाहता, मेरे केस में ये रीजन था, परफेक्शन मोड में जाता एक बार लॉन्च, मतलब जब मैं बताया ना कि अल्फा क्लब ज्वाइन किया था, तो उसके हाँ। बीच में 7-8 महीना हो गया। ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए थे, एजेंसी चला रहे थे, साथ साथ में लॉन्च भी कर रहे थे कोचिंग बिजनेस। अच्छा। वेबिनार लॉन्च किए, एक दो वेबिनार किए, बंद कर दिया। फिर अच्छा। लगा कि नहीं, चलो ये करते हैं, लॉन्च किया, बंद कर दिया। चीज हम्म। सेम है, निश सेम है, टॉपिक सेम है, वो तो मेरा क्लियर है सब कुछ। हम्म। बट कुछ भी रीजन से कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करेंगे एड्स, लीड्स और सेल्स के बारे में, हम्म। लोगों को उसके बारे में सिखाएंगे। या फिर नहीं, हम लोग सिखाते हैं लोगों को थोड़ा और बेसिक सिखाते हैं, हाउ टू स्टार्ट द कोचिंग बिजनेस। या फिर हम्म। नहीं, कोचिंग बिजनेस वाले को क्यों सिखाए, हम सिखाते हैं हाउ टू मार्केट योर कोचिंग बिजनेस। तो इतना छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल्स, निश सेम है, ऑडियंस सेम है, सब कुछ सेम है, आउटकम भी सेम है, बट उसको कैसे बेटर पोजिशनिंग करे, उसको पोजिशनिंग हम बोल सकते हैं, कैसे उसको बेटर लोगों के मार्केटिंग मैसेजिंग कैसे बहुत अच्छा हो, वो सब पे भी हम इतना फोकस करते रहते, तो चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया। तो इस 6-7 महीने के जर्नी में हम 4-5 बार चालू बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये मुझे, हाँ। ये आज मुझे बताया है, अब मैं भी इसको याद रखूंगा, इसका मैं बदला लूंगा। हाँ, फिर सेल्स हाँ। आता था, कुछ लोगों को रिफंड भी किए कि अब 2 ही लोगों को क्या पढ़ाएंगे, आपको रिफंड कर रहे हैं हम लोग, दोबारा बैच चालू होगा तो आपको बुलाएंगे। करेक्ट। तो इस तरह से चलता था। तो ये दिक्कत हो रहा है, तो होता क्या है कि इसको और एक्सपैंड करें, थोड़ा एक्सेजरेट करें रियल स्टोरी में। तो अभी हम 6-7 महीना का बात किया है, बट ये हम कोचिंग 3-4 साल पहले चालू कर चुके थे, प्री करेक्ट। पेंडेमिक ही चालू कर चुके थे। आई थिंक 2019 नवंबर में चालू किए थे हम एक्चुअल में ये करेक्ट। कोचिंग जर्नी। तो लगभग 5 साल हो गया। तो देखा जाए तो हम 5 साल से कंसिस्टेंट नहीं है, ये हो गया फैक्ट। हम भले बात कर रहे 1 महीना में 4 वेबिनार नहीं कर रहे, 6 महीना नहीं, एक्चुअल में हम 5 साल से कंटिन्यूअसली वेबिनार्स नहीं कर रहे। जो करेक्ट। मार्केट में 5 साल से वेबिनार कर रहे बाकी लोग, वो लोग ऑफ कोर्स हमसे 1000 गुना अलग लेवल पे है। नॉट करेक्ट। बिकॉज उनके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, हो सकता है मेरे पास उनसे ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ। बहुत लोग वैलिडेट भी किए कि अरे आपके पास तो उनसे भी ज्यादा नॉलेज है। और बराबर है। मुझे भी पता चलता है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के कारण। बट वो सक्सेसफुल है बिकॉज वो एक्शन ले रहे, इंप्लीमेंट कर रहे, कंसिस्टेंट रह रहे। हम्म। वो मेरा रीजन है फेलियर का, काइंड ऑफ फेलियर बोल लो या फिर ज्यादा सक्सेसफुल ना होना। जिस करेक्ट। लेवल पे हम 100x जो अभी हमें, वहां से 100x और हो सकते थे। एब्सोल्युटली। और जो ऑलरेडी 100x पे, मतलब कोई भी लेवल पे, वहां से और ग्रो कर हाँ सकते हाँ हैं, हाँ। कहीं से भी है। तो ये है मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब मेरे लाइफ का। आई होप ऑडियंस भी रिलेट कर पा रहे हो इससे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पंकज, बिकॉज आई नो दिस इज नॉट इजी। हम्म यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब
जहाँ पे अगर हम खुद को गलत दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, या बता रहे हैं कि ठीक है हमसे ये मिस्टेक्स हुई है, हम अपने स्ट्रेंथ्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं स्टार्ट करने के लिए भले कितना भी टाइम ले लूं, लेकिन अगर मैंने एक बार स्टार्ट कर लिया फिर भाई पॉज नहीं आता। पंकज के साथ जब बात हो रही थी पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है हफ्ते में एक एपिसोड, मतलब कर पाएंगे, इतना टॉपिक्स है हमारे पास, मतलब देख लेंगे, हफ्ते में एक एपिसोड फाइनल कर लो, टॉपिक्स आ जाएंगे। अभी वेबिनार स्टार्ट किया है, लीड कॉस्ट ज्यादा आ रही है, भले एड्स को बंद कर दिया है, भले वेबिनार रूम में लोग कम आ रहे हैं, भले ज्यादा और बहुत सारे प्रोसेसेस को सुधारना है बैकएंड में, लेकिन वेबिनार बंद नहीं होंगे अभी। फिर भले वेबिनार में 2 लोगों के लिए मेरे को पूरा वेबिनार करना पड़े जो मुझे ही चुभेगा, क्योंकि कहीं ना भी कहीं मुझे भी पता है ना कि मैं ये मेरी बेवकूफी की वजह से कम लोग आ रहे हैं, लेकिन वेबिनार्स बंद नहीं होंगे। तो वो कंसिस्टेंसी है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्ट्रांग होती जाती है। और उस कंसिस्टेंसी के लिए तो मेरे बहुत एग्जांपल्स है, जैसे मैं पिछले अभी 250 दिन से मेरा न्यूज़लेटर चल रहा है, भले भले फिर मैं उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दे के ये नहीं कर पा रहा हूँ, अपना क्या बोलते हैं ऑडियंस और नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी। तो कंसिस्टेंसी का अगर किसी को तकलीफ है तो आओ मेरे पास, वहां पे मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, वहां पे बहुत एग्जाम्पल्स है मेरे पास। बट हाँ, starting and staying consistent are equally important. So if you are starting but you're not staying consistent, you're just as worse as somebody who's not starting, if not even worse. But if you are somebody who's taking forever to start, promise yourself that the day you start, you will start with absolute consistency, because then again you've already lost out on some time, and I don't want you to then play a 50% role, then give it your 100%. यस एंड जैसे कि मैं लैक ऑफ एक्शन का अपना कारण बता रहा था, उसी तरह से कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो रहा था वो आपको दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियंस को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। वो बेसिकली हमारा 9th पॉइंट के कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं था। हाँ, हाँ ये 9 कि पॉइंट बहुत बड़ा है। हाँ क्योंकि मैं 180 डेज तक, मतलब 2019 में जब कोचिंग चालू किया था, लिटरली लिटरली 180 डेज तक लगातार लाइव हम डेली जाते थे, हर दिन लाइव जाते थे, हर दिन। और और 7 बाद डेज में का मेरा आ गया प्रोग्राम आपके होता लाइफ था। में 9 पॉइंट। हाँ हाँ, फिर लाइफ में मेरा 9th पॉइंट आ गया, और उसके लिटरली मतलब ये एक्चुअल में सीक्वेंस में बैठ गया है। तो इस क्योंकि एक्चुअल में सब कनेक्टेड ही होता है, मतलब एक कोई ऐसा नहीं कि लैक ऑफ एक्शन इसके वजह से, हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 180 डेज तक हम कंसिस्टेंट थे, उसी समय हम जाके अपना जॉब को रिप्लेस किए थे। इनफैक्ट हम भी पार्ट टाइम कर रहे थे, अगर हम पार्ट टाइम वाले एग्जांपल पे वापस आए, जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ हम कोचिंग चालू की है, बट कोचिंग को भी हम फुल टाइम लिए थे, काइंड ऑफ डबल फुल टाइम काम कर रहे थे डबल काम जो। कर रहे थे। हाँ, जो हम बताते थे कि 3-4 घंटा सोते थे, क्योंकि हाँ, कोचिंग कर रहे थे, मतलब जॉब से पैसा कमा रहे थे, उससे ज्यादा पैसा हमको इधर से कमाना था एक बार रिप्लेस करने के लिए कॉन्फिडेंटली, करेक्ट। कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि नहीं है इसमें, बहुत सारे रीजंस था। तो 8-9 घंटा 10 घंटा जॉब पे जाता था, तो 10 घंटा हम यहाँ पे भी देते थे पूरा का पूरा लिटरली। उसका ब्रेकअप भी हम दिए थे कि जो नहीं देखे पहले का एपिसोड, उनके लिए ये हो गया कि लगभग 8-9 बजे हम लोग उठते थे। हम लोग क्या, मतलब हम 8-9 बजे उठते थे, और फिर वो जाते थे ऑफिस ऑफिस, फिर वापस से शाम को 8 बजे आते थे। वो तो नॉर्मल है कि 1-2 घंटा ऊपर नीचे ट्रैफिक में लगता है। 8 बजे आए, फिर 9 बजे से मेरा वो 7 डेज वाला प्रोग्राम चालू होता था, तो 9 से 11 वो चलता था। फिर थोड़ा देर ब्रेक लेते थे, खाते पीते थे, फिर 12 से 2 बजे तक क्लाइंट का काम करते थे, करेक्ट। और फिर इसी तरह से वापस अगले दिन 7 बजे 8 बजे फिर से उठना। तो ये लिटरली 180 डेज तक लगातार रिपीट किए थे। तो कंसिस्टेंसी का तो मेरे एग्जांपल वहां पे आता है कि कितना कंसिस्टेंट हम थे, बट रह नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ दिस। ऑफ कोर्स। तो और ये भी मतलब कोई एक्चुअल में जो दिस वाला रीजन बोल रही है, अभी हम इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वो डिस्कस करने गए तो फिर वापस आधा घंटा का एपिसोड और लंबा चला जाएगा। इसलिए यूजुअली हम नहीं करते ऐसा कि उसको सस्पेंस बना के बाद में रखते हैं, बट अभी हम लोग नहीं कर सकते उसको, वरना फिर वो लंबा हो जाएगा। रखना भी चाहिए, थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए। अभी एक हफ्ते का ही तो वेट है, और लोगों क्या। ने 2-2 साल वेट कर लिया था देखने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो एक हफ्ता तो वेट कर सकते हैं ना ये 9th रीजन क्या है जानने के लिए। यस, जैसे कि आज इसका वेट करा रहा है मेरे को, अभी सुबह मुझे मनी हाइस्ट का वो दिखा ट्रेलर। अब वो बोला कि बर्लिन। हाँ हाँ। बर्लिन, तो मुझे हाँ। मैं खुश हो गया, अरे वाह ये आया, कुछ हाँ। नया चीज देखेंगे मजा आएगा। लेकिन नहीं यार, ये तो नवंबर दिसंबर कुछ एंड में दिसंबर। लॉन्च हो रहा है। हाँ। करेक्ट। तो फिर बस हम अगर बर्लिन के लिए दिसंबर तक वेट कर सकते हो, तो आपको हम 9th पॉइंट के लिए, जिसकी वजह से आपका पंकज बिजनेस फेल हो रहा है पूरा का पूरा। पंकज का कंसिस्टेंसी फेल हुआ, तो आप एक हफ्ता तो वेट कर ही सकते हैं।
यस और उसके बाद बहुत सारा लिटरली अभी तुम लोग मुझे अब लग रहा है मनीषी की जब भी हम लोग 8 पॉइंट बात किए बाकी पॉइंट तो और बड़ा बड़ा पॉइंट है मतलब हर हाँ, पॉइंट है किसी के लिए कोई पॉइंट बड़ा है किसी के लिए कोई पॉइंट बड़ा exactly. है So what will डेफिनेटली happen is, see, I'll give you a very honest way. How did this happen? We started working on this episode. We started working on the blueprint, and I started typing. मैं टाइप कर रहा था. मैंने 5-6 पॉइंट्स ऐसे जल्दी टाइप कर लिए बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस. उसके बाद पंकज आ रहा है अपना एक ट्रम्प कार्ड, दूसरा ट्रम्प कार्ड, तीसरा ट्रम्प कार्ड, चौथा ट्रम्प कार्ड. तो उसके बाद जाके ये 16 पॉइंट्स बने जिसमें आज हमको सिर्फ 8 पॉइंट डिस्कस करने के लिए अच्छा खासा टाइम लग गया. सो I think, Pankaj, would you like to say something else for this particular episode, or should we bring this episode to close? नहीं मतलब अभी के लिए मैं बस लोगों को वही बोलूंगा कि मैं भी कोशिश करता हूँ ये सबको पॉइंट को इम्प्रूव करने का मतलब मेरा मानना है वो ये वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 9 आप Correct. चालू कर लो मैं अपने लिए भी मतलब मैं इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट किया करता था ये सब कोट्स लोगों के लिए और वो भी रीजन होता था कि मैं मेरा दोस्त क्या करता था वो मुझे वो दिखाता था कभी कभी मैं अटकता था ना बोलता वो पोस्ट मेरे को शेयर कर देता था बोला अरे तुम ही तो पोस्ट किए थे कुछ दिन पहले ही ये चीज बोला हाँ बात तो सही है फिर मैं एक्शन मोड पे जाता था तो आप लोग भी अपना पॉइंट्स को लिखिए मतलब जो भी आपको होता है जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो मैं इस चीज का कोच नहीं हूँ कि कैसे कर पाता हूँ बट जिस तरह से फॉलो हो सकता है कि आपको कंप्यूटर पे लिखना है मोबाइल पे लिखना है अलार्म लगाना है किसी कोच के पास जाना पड़ रहा है मनी माइंडसेट कोच के पास जाना पड़ रहा है या फिर फेसबुक एड्स पे अटक रहे हो तो मेरे पास आना पड़ रहा है या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो एनर्जी कम है हीलिंग कोच के पास जाइए किसी के पास भी जाइए बट उसको सॉल्व करिए क्योंकि मुझे अभी रिग्रेट होता है ना जो लोग बोलते हैं कि पास्ट में जाकर रिग्रेट होता है मुझे अभी जो मैं बता रहा था कि अगर मुझे लगता है कि अरे ये कोर्स तो इतना बड़ा बन गया मेरा भी सिमिलर नॉलेज है बट एक्चुअल में जो फैमिली देख रहे फ्रेंड्स देख रहे या फिर कोई भी देख रहा है मैं देख रहा हूँ तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा रीजन से उसको फर्क पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है वो कर रहा है Correct. क्योंकि वो कंसिस्टेंट था और क्या कर रहा है उससे मतलब ही नहीं है उनका लेवल दिखता है कहाँ पहुंच चुका है, उसने कितना कहाँ डिस्टेंस पहुंच चुका कवर कर है लिया. यस तो अब मुझे वापस वहां तक जाने में टाइम लगेगा जो वो कोच ऑलरेडी 50,000 लोगों को साथ डील कर रहा है अब मैं Correct. आज के डेट में मेरा 5,000 6,000 लोगों के साथ कांटेक्ट है कोचेस के साथ धीरे धीरे वो 50,000 कोचेस को जान रहा है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल हो चुका होता है हो सकता है अगर मैं कंसिस्टेंट रहता तो मैं भी 50,000 को जानता दोनों हम लोग सेम Correct. फील्ड में Absolutely. रहते हैं Absolutely. ये So चीज है that's it. कर लूँ ये एपिसोड को मैं. हाँ मतलब दुखी दुख था आज का एपिसोड में तो मेरा मेरा खुद का वो दिख रहा है कि मुझे तो लगता है कि एपिसोड लाइव ही नहीं करना चाहिए इतना सारी चीजें हम लोग अपने बारे में बोल दिए दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा. हाँ 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 अब भेजे थे वो व्हाट्सएप पे वो इमोटिकॉन Okay. So अगर ये देखने के बाद में भी आपको लगता है ना कि हम कुछ भी छुपाकर बात कर रहे हैं, हम पूरा नॉलेज नहीं दे रहे हैं, भाई आप छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा. क्योंकि इससे ज्यादा ऑनेस्टी और इससे ज्यादा वल्नरेबिलिटी तो हमने दिखाई नहीं है. ठीक है ना. बट आई एम टेलिंग यू दिस एंड आई एम नॉट जोकिंग. आई एम नॉट trying to create false hype. We have literally just covered the tip of the iceberg. The next 8 points are mega dragons. So if you found value in this episode, please share your notes, share your comments, share this episode with people. Of course, by now I'm sure you've subscribed and liked the video at least 5 times. Do not forget to watch the next episode. We are going to talk about more concepts. We are going to talk about, and if you think we've been vulnerable in this episode, boss, Pankaj has already told you, the next point is literally the reason why he could not function ahead. What was that point? What, and 99.9% people in this industry, or forget about this industry, 99.9% people in the world today are dealing with that particular situation. So what is that situation? What are the other 8 reasons? What else can you do to grow your coaching business? We'll talk about all of that and so much more. And we'll bring back pizzas, we'll bring back our vulnerabilities, we'll bring back everything that you've always loved in our episode. So see you next week. Thank you so much. This is Coach I Need Help. Take care. I'll see you in the next episode. थैंक यू बाय